चलो समय पहला आई वुड लाइक टू थैंक दी कॉलेज मैनेजमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स मैकेनिकल सिविल जिन्होंने सानू अपॉर्चुनिटी दिता इस सैमीनार दे लिए इस अवेयरनेस कैंपेन दे लिए ते आई थिंक पूरे जिन्ने भी अवेलेबल हैं सारे मैकेनिकल तो सिविल हैं मेजॉरिटी मैकेनिकल है कोई उरे जस्ट रेज हैंड मैकेनिकल है ओके मैकेनिकल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर final year good civil first year civil second year third year final year okay great chalo let me first of all tell you that what is the purpose of this session see ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਕਿਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਫੋਰਨ ਰਾਈਟ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ क्योंकि जो अपने रोल मॉडल्स हैं जो अपने सीनियर्स हैं अपने जो एग्जाम्पल सेट हो रही हैं मेजोरिटी वही चीज कर रहे हैं फॉरन के लिए स्पेशली कैनेडा यूके या जी कंट्रीज रिलेटेड है मैं तुहानू वो सारी ऑप्शंस पूरे कवर करके चलांगा कि जिस दे विच तुहाडी फॉरन दे विच क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं तुहाडे कोल अगर सपोज तुसीं इंडिया दे विच रहना तो तुहाडे कोल क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारी ऑप्शंस नू क्या क्या किस तरीके नाल उसनू परस्यू करने वो सारी ऑप्शंस आपां लेके चलेंगे उरे राइट सबसे पहला मैं अपना तुहानू इंट्रोडक्शन देना माय नेम इज गुरविंदर साडे तीन प्लेटफॉर्म है इंजीनियर्स करियर पॉइंट वी स्टार्टेड इन 2011 च ਅਸੀਂ स्टार्ट ਕੀਤਾ ਸੀ we are based in chandigarh right we prepare students for various career related exams ਜਿਵੇਂ ਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया ਤੁਹਾਡੇ स्टेट एग्जाम्स हो गया एसएससी जेई हो गया इन एग्जाम्स से रिलेटेड प्रिपरेशन करवाने हैं और यस इन इंग्लिश okay you will you be able to understand english na that is okay english na yes okay so we prepare students for all those career related exams jede ki especially for your this engineering related like gate is there engineering services there state exams are there central government ssc JEE exams are there right and then in 2017 we started this Yourpedia platform and Yourpedia platform I am proudly saying everywhere we are doing wonders roughly as of now 245k subscribers are there 2.5 lakh people are following Yourpedia and we are doing a very unique thing and what that unique thing is that we are guiding students to go for the higher studies in the domain of master's program or PhD programs India as well as the abroad and we are telling you all that what is the importance of higher studies means we will start from there that what is the importance of higher studies that is the main motto because see as you all if we ask all of you that what you want to do after the BTech so majority will raise hand sir I want to go abroad more than 50% will say sir I want to go abroad otherwise next what they will want to do they will want to go for the job very less hand will be raised if I ask that who want to go for the higher studies very less hand will be raised yes higher studies not going for the abroad but for the sake of going abroad you are going there right so this is the main basically ecosystem is there in this time of this Punjab region right so this is the main problem so what we are doing we are basically guiding students to go for the higher studies why they go for the higher studies from where they go for the higher studies what will be the benefit of doing this higher studies that everything we are covering and we are in a stage Yourpedia is in a stage where we are doing the academic profiling of the IITs are inviting Yourpedia to do their academic profiling now what is the meaning of academic profiling meaning is that we are going the IITs are inviting us and we are taking the interviews of the professors over there like from mechanical branch electronics branch electrical branch civil branch so what we are doing that we are taking their sessions we are taking their interviews right so this is what Yourpedia is doing and in fact it is not only related to the professors over there it is also related to the students that what students are doing in their higher studies and what they will do after their they do masters or PhD program from there and what are the
placement opportunities over there, and what benefit they are getting from there after they do the masters or the PhD program or higher studies program. This is the main thing. See, there may be chance that what I'm just saying you that there may be some students over there which will say that, sir, I don't want to go for the higher studies, why I'm just listening to this thing. See, main thing is the awareness that you should have that all the options available, or you should know all the options available being an electric mechanical engineer or being the civil engineer what you have. That is the main thing. So you should know the option. See, it is not about that you want to do or not. It is not related to that. But you should have the awareness. आप लोगों को पता होना चाहिए that these all options I have when I completed my masters or when I completed my PhD, or if I want to go abroad, that how I go for the abroad options. This awareness should be required. Now my presentation will be more or less will be oriented towards the GATE exam. Now why GATE exam? Let me first of all tell you, because in complete world, GATE is the only single exam, and this is the beauty of this GATE exam, that whatever you want to do, sir, I want to go for the higher studies. Is it possible through GATE exam? Yes, it is possible through GATE exam. Sir, I want to go for the job. Sir, is it possible through the GATE exam? Yes, it is available through the GATE exam. Sir, I want to go abroad. Sir, is it possible through the GATE exam? Yes, it is available through the GATE exam. Sir, I want to go into the management program. Sir, is it possible through the GATE exam? Yes, it is available through the GATE exam. Now you tell me, out of these, sir, I want to go into the entrepreneurship. Sir, I have to start my own venture. So what will be the benefit of doing the GATE exam or the higher studies? That I will explain you. I think these are the 4 or 5 options you will be having available after you complete your bachelor. These all options are there, and these all options are available through one exam. That exam is known as the GATE exam. And what is GATE? GATE is basically Graduate Aptitude Test in Engineering. This is the full form of GATE. GATE, Graduate Aptitude Test in Engineering. See, GATE is not a difficult exam. Remove it from your mind. So is it a difficult exam? No, it is not at all a difficult exam. It is a basically conceptual exam. It is an aptitude exam. If you qualify GATE, it is basically you can say that a certificate or a proof that you are having a knowledge, or your fundamentals or basics are okay with your related to your branch. That if you go anywhere, so I'm a mechanical engineer, I am GATE qualified, so he will not question mark on your skills related to or your knowledge related to your branch. That okay, you have completed your BTech in mechanical. If you are GATE qualified, he will automatically understand, yes, if he or she has qualified GATE, it means his fundamental, his concepts are okay, or it is good because he or she has completed the GATE exam, cleared the GATE exam. And that again depends upon that how many marks you got from there. That is also totally depending upon that. So this is the basically beauty of this GATE exam. So these all options what I told you, you want to go for the higher studies through GATE exam? Yes, options available. India abroad, all options, yes, available. Management options, all options, yes, available. So job, all options available? Yes, all options available. If you want to enter into the entrepreneurship, yes, this also the experience that you get from the GATE or from the path which I will tell you, that is going to give you the edge or benefit for your entrepreneurship. Now, one thing I want to tell you in the beginning, because only then you will be relate this my statement in the end when I will complete this presentation. Don't ever go in a hurry to do the job, especially after the BTech exam. BTech करने के बाद जॉब करने का जल्दी मत करना. That will be the biggest mistake of your life. जल्दी मत करना. That will be the biggest mistake of your life. Why I'm just telling you, I will prove you this thing. Because whatever you have done till now, so that I will not say that you are specialized in any case. Now you see that what is the demand of today's world. आज के वर्ल्ड की डिमांड क्या है? Today's world is required the specialized person. What industries required? What companies are requiring? They are requiring the specialized persons. They require specialized person in structure domain. They want specialized person in thermal domain. They want specialized person in data science domain. They want specialized person in AI domain. These all options you are, until or unless you don't have the specialization in any case, your value, you will not get that value of yourself or your talent. अगर मैं इस चीज की बात करूं तो आपका वो वैल्यू नहीं डलेगा. Only it is possible if you have the specialization. पहली चीज knowledge. If you have the knowledge, then only you will get that value which you deserve. Second thing, the important thing is the branding. Branding is the second most important part.
As of now, if you go anywhere with your resume when you will be passed out, so on your resume, what will be there? 10th, this mark, this percentage. 12th, this mark, this percentage from there. BTech, this college, this percentage is there. Where is the branding part? Where we miss the main thing is the missing the branding, जिससे आपका value डलेगा. I am coming here wearing the Yourpedia t-shirt. You don't know that as of now what Yourpedia is all about. Go into the IITs, go into the higher studies domain, because those people who know what Yourpedia is doing, they will say, okay, Yourpedia से आए हैं. That is the main thing. So that the branding is the most important part. कि if on your resume there should be something like, sir, I have done internship of 6 weeks or 6 months from this IIT under this professor. That is going to give you the edge. That is going to give you the benefit. That is the part I am talking about, the branding. Second, sir, I have done masters from this IIT or this NIT in this particular domain. That is the branding. Second main benefit of going for the higher studies, that is the branding part by which you will get the value. The company which is coming here, like I think if anyone of you is interested for the, let us suppose, non-core domains, you don't want to enter into the core domains, कि आप अपनी civil या mechanical domain से हटना चाहते हैं, you want to go into the computer science domain, आप लोग projects कर रहे हैं, you must be doing some coding over there, interest develop हो जाता है. Interest देखो by the time develop होता है. By the time कैसे develop होता है? You were doing some project, आप कोई project कर रहे हो, प्रोजेक्ट करते करते आपने बोला कि सर मेरे को अपने प्रोफेसर से पूछा कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट. वो आपको ये बताएंगे कि अच्छा एक काम करो यार, ये ना इसमें आप ऐसा ऐसा कोड लिखो, ऐसा ऐसा करो, तुम्हारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा या तुम अपनी सॉल्यूशन के ऊपर जल्दी आ जाओगे. तो इट मींस क्या हुआ कि वो करते करते आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और जब वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो आपको लगा नहीं यार ये तो बहुत इजी चीज है, इसमें तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, मैं और भी बहुत ऑप्शंस ओपन कर सकता हूं. सो दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट डेवलपमेंट बाय द टाइम. ऐसी बहुत सारी चीजें, नॉट ओनली रिलेटेड टू योर नॉन कोड डोमेन. कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं है. आप सिविल इंजीनियर हैं, आपने प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रोजेक्ट करते करते उसमें आपने स्ट्रक्चर वाला पार्ट भी आया, उसमें सॉइल का पार्ट भी आया, उसमें सपोज फॉर एग्जांपल वाटर का पार्ट भी आया, लेकिन उसमें से आपको एक ऐसी चीज लगेगी कि जिसमें आपको लगेगा नहीं यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, वहां से इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. राइट. सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर, चाहे वो मैकेनिकल डोमेन है, चाहे वो सिविल डोमेन है, हर किसी में वो डोमेन में वो जो है इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ अब मैं बात कर रहा था हायर स्टडीज की, कि हायर स्टडीज का इंपॉर्टेंस क्या है. सबसे पहला चीज मैंने आप लोगों को क्या बताया कि व्हाई हायर स्टडीज, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द स्पेशलाइज्ड. देखिए अभी तक आप लोग क्या करते हैं, मैं पिछले 2-3 दिन पहले पैक कॉलेज में था, मैंने प्रेजेंटेशन किया, कुछ बात चली, उसने मेरे को बोला कि सर जो आप बात कर रहे हो कि स्टूडेंट क्यों इस टाइम पे कंप्यूटर साइंस में क्यों जाना चाहता है, आई एम जस्ट आस्किंग यू दिस क्वेश्चन कि मेजॉरिटी स्टूडेंट इस टाइम पे बीटेक कंप्यूटर साइंस में क्यों करना चाह रहा है. व्हाई, क्यों करना चाह रहा है बीटेक में कंप्यूटर साइंस, क्यों करना चाह रहा है? हाँ, जॉब इजीली लग जाती है, सैलरी पैकेजेस अच्छे मिल जाते हैं, यही रीजन है. सिविल आप लोगों में से जिसने भी सिविल सिलेक्ट किया, कोई एक मेरे को रीजन बता सकता है कि व्हाई आपने सिविल क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना था, दैट वाज द रीजन. हाँ है ना? यस. मैकेनिकल क्यों ज्वाइन किया? कोई मेरे को कोई एक रीजन बताओ, मैकेनिकल क्यों ज्वाइन किया? हाँ, बिजनेस के लिए. कोई और रीजन मैकेनिकल ज्वाइन करने का? डिफेंस डोमेन में जाना, वो तो किसी भी ब्रांच से जा सकते थे. मैकेनिकल से क्यों किया? देर में भी चांस कि शायद आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, या ठीक है शायद वो आप ऐसा एक आंसर वहां पे कर देंगे मेरे को जो शायद एक ट्रेंड वाला है आंसर. कि ट्रेंड, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस की बात की, दैट व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू डू बीटेक इन दिस कंप्यूटर साइंस डोमेन. अगेन दैट रैट रेस, दैट ट्रेंड कि सर उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज इजीली हो जाता है, सर प्लेसमेंट इजीली हो जाएगा, सिर्फ ज्यादा मेरे को अगर मेरे को कल को अपना बिजनेस भी करना है तो मेरे को ज्यादा सेटअप नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, एक लैपटॉप से काम हो जाएगा, मैं घर के रह के भी अपना काम कर सकता हूं. लेकिन अगर मैकेनिकल सिविल में मेरे को कोई अपना बिजनेस करना है, मेरे को मशीनरी लाना पड़ेगा, मेरे को सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा. बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं. तो हायर स्टडीज के क्या बेनिफिट क्या नुकसान है वो मैं आपको अभी टाइम के साथ बता रहा हूं. अभी सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया गेट एग्जाम की मैंने बात की, मेरा प्रेजेंटेशन विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स दिस गेट एग्जाम. रीजन बिहाइंड बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शंस आर थ्रू द गेट एग्जाम. वो कैसे करियर से रिलेट हो जाएगा, वो कैसे डॉट कनेक्ट होंगे, दैट विल बी यू विल बी एबल टू नो एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन कि वो कैसे डॉट कनेक्ट होगा. राइट. सो अवर थर्ड प्लेटफॉर्म इज बाय द नेम ऑफ योरपीडिया ग्लोबल, वेयर वी आर सेंडिंग स्टूडेंट्स अब्रॉड, बट नॉट ऑन दैट वे कि जिस तरीके से
सॉरी टू से आप मेजोरिटी लोग जाना चाहते हैं। हाउ यू वांट टू गो अब्रॉड? सर मेरे को अब्रॉड जाना है, जैसे तैसे भेज दीजिए। यार यू ऑल आर द टेक्नोक्रेट्स, यू ऑल आर द स्किल्ड पर्सन, मैकेनिकल है, सिविल ब्रांच है, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं अब्रॉड में, आपकी पर्टिकुलर डोमेन में, आपकी अपनी डोमेन को लेके। देन व्हाई यू वांट टू गो अब्रॉड एज अ लेबरर? दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, डोंट गो एज अ लेबरर, गो एज अ टेक्निकल स्किल्ड पर्सन। सर वो कैसे पॉसिबल? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ इट इज पॉसिबल। बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, स्पेशली इस रीजन के अंदर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल रीजन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस टाइम पे? दैट वी डोंट हैव द अवेयरनेस। मेरे को पता ही नहीं है कि सर वो जाना कहते हैं, कहां क्या क्या रास्ते होते हैं, किस तरीके से मेरे को जाना होता है। सर स्कॉलरशिप अवेलेबल है। मैं आपको आज एक रास्ता बता के जाऊंगा कि जिसमें 2 लाख मैक्सिमम है जो आप लोगों ने स्पेंड करने हैं अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो। दैट 2 लाख इज द लिमिट। इससे बियॉन्ड हमें स्पेंड करना ही है। दैट इज द अपर लिमिट, राइट? Now, what is GATE exam? I already told you. So GATE exam pattern मेरे को आपको थोड़ा सा बताना है कि what is the exam pattern of the GATE exam? 65 questions are there, 180 minutes are there. 3 घंटे का एग्जाम होता है, 65 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन इज देयर, 2 मार्क क्वेश्चन इज देयर। सो 30 क्वेश्चंस आर 1 मार्क, 35 क्वेश्चंस आर 2 मार्क्स। सिलेबस जो इसका होता है जिसमें 70% आपका टेक्निकल होगा फ्रॉम योर मैकेनिकल ब्रांच, फ्रॉम योर सिविल ब्रांच। 30 marks will be of your non-technical part. Out of those 30 marks, 15 marks is of engineering mathematics, 15 marks is of quantitative aptitude, reasoning and English part. So this is the exam pattern. 3 types of questions are there. One is the multiple choice question is there, second one is the multiple selection question is there, and third one is your numerical answer type question जिसमें filling का blank होगा, you have to write the answer over there. So this is the exam pattern of this GATE exam. Now, why I do go for the GATE exam? GATE exam का मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। See, student can write GATE in 3rd year and final year. आप लोगों को जो भी अभी फाइनल ईयर में है या प्री फाइनल ईयर है या सेकंड ईयर में है, you should know this information, very important information, कि आप लोग GATE का एग्जाम 3rd ईयर में दे सकते हैं। 3rd ईयर में दे सकते हैं, उसके बाद आप जब मर्जी तक देते जाइए। There is not any limit for that. GATE एग्जाम का लिमिट नहीं होता है। रीजन बिहाइंड, बिकॉज GATE एग्जाम इन एक्चुअल वाज स्टार्टेड टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन इंडिया। हायर स्टडीज इन इंडिया, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? यू टेल मी। किसी ने रॉकेट बाय सीरीज देखी है? देखिए देखिए नहीं देखिए सोनी पे? चलो, हायर स्टडीज का पहले मैं आपको बताता हूं कि हायर स्टडीज का पहले रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा है कंट्री के अंदर। 47 में पार्टीशन हुआ, ठीक है, जैसे जैसे चीजें चल रही थी, मेजोरिटी चीजें उस टाइम पे क्या हो रहा था? उस टाइम पे उसने क्या बोला था? कौन था? बाबा, है ना? देखिए सीरीज नहीं देखी है? नहीं। उसने ये बोला था कि यार ये टाई भी जो इंपोर्ट हो रही है, जूते भी इंपोर्ट हो रहे हैं, शर्ट भी इंपोर्ट हो रही है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उसने वो पर्सन थे बाबा जी जो आपके जिसके नाम पे BRC सेंटर है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। उन्होंने बोला था कि न्यूक्लियर एनर्जी को यहीं पे डेवलप करते हैं, हर घर में लाइट आ जाएगी। एक रेवोल्यूशनरी था, मतलब कहने का मतलब था, उनके कहने का क्लियरली मतलब ये था कि हमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा, सब हर कोई बिजनेस के लिए है। यहाँ पे हम लोग बिजनेस यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन कंट्री के साथ भी बिजनेस हो रहा है कि कुछ इंपोर्ट हो रहा है, कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अगर किसी कंट्री को डेवलपमेंट करना है तो हमें कोई भी चीज का जो है वो R&D विंग हमें कंट्री के अंदर ही डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके बिना कंट्री डेवलप नहीं होगा। उसने क्लियरली बोली थी ये बात, ये कि क्या कौन किसी भी कंट्री को डेवलप कर सकता है? यू टेल मी, क्या डॉक्टर किसी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं? कोई लॉयर किसी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं? कौन डेवलप कर सकता है? यू ऑल टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर्स, ओनली इंजीनियर्स कैन डेवलप एनी नेशन। इसके बिना डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है, इसके बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। सो दैट इज द रीजन व्हाई दैट वाज द नेसेसिटी ऑफ दिस कंट्री, कि जिसमें यहीं पे डेवलपमेंट करना, यहीं पे अपनी रिसर्च स्टार्ट करना, यहीं पे प्रमोट करना हायर स्टडीज को। रिसर्च बीटेक लेवल पे आप लोग कुछ रिसर्च कर रहे हैं? आप लोग कुछ करते हैं रिसर्च बीटेक लेवल पे? नहीं होती है। कहां किस लेवल पे रिसर्च होती है? मास्टर्स लेवल पे, PhD लेवल पे। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर रिसर्च तो इंडस्ट्रीज के अंदर होती है। सॉरी, इंडस्ट्रीज के अंदर रिसर्च नहीं होती है। जब इंडस्ट्री को किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कोई उनके पास प्रॉब्लम आती है, वो कहां लेके जाते हैं? प्रोफेसर्स के पास लेके जाते हैं।
जो आईटीज में, एनआईटीज में जहां पे वो रिसर्च फैसिलिटीज अवेलेबल है उस डोमेन से रिलेटेड, वहां पे वो प्रॉब्लम जाती है प्रोफेसर के पास। और प्रोफेसर अकेला कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? प्रोफेसर को चाहिए टीम, और वो टीम कौन है? जो आते हैं वहां पे मास्टर्स करने के लिए या पीएचडी करने के लिए, दैट इज द टीम। और वहीं से रिसर्च का स्टार्ट हुआ ट्रेंड। तो उन्होंने ये बोला कि भाई अगर कंट्री में, कि अगर सपोज तुम्हें हायर स्टडीज करनी है तो एक एग्जाम क्रैक करके आओ, नॉट फॉर द सेक ऑफ मास्टर्स करने के लिए या पीएचडी करने के लिए। एक 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 ट्रेंड स्टार्ट करते हैं, एक काम स्टार्ट करते हैं कि भाई ठीक है, जिसमें विन विन सिचुएशन हर किसी का होना चाहिए। क्या ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये किसका रिक्वायरमेंट है? ये सोसाइटी का रिक्वायरमेंट है, ये इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है। लेकिन वो इंडस्ट्री किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? वो सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ई व्हीकल चाइना के अंदर फेलियर हो चुका है टोटली। अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे आजमा रही है, जितनी भी कंपनीज हैं, कि इंडिया में क्या पता ये इंडिया में सिस्टम चल जाए। क्यों नहीं चल पाए ई व्हीकल्स? क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इतना ज्यादा नहीं वो उस पेस पे हो रहा है जिस पेस पे होना चाहिए? रीजन उसके पीछे ये है कि जो उसका चार्जिंग टाइम, सॉरी जो तो चार्जिंग टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कि कितना टाइम उसको चार्ज होने में लग रहा है। दूसरा उसका एफिशिएंसी। तीसरा कॉस्ट ऑफ द बैटरीज। ये तीन रीजन है फेलियर होने के। एक तो चार्जिंग टाइम, मेरे को जाना भी 600 किलोमीटर, अब मैं सुबह आया हूं, मैं 300 किलोमीटर मेरे को ट्रेवल किया है, उसका गाड़ी का जो एवरेज टाइम निकल रहा है वो 230-250 आवर्स के आसपास, किलोमीटर के आसपास निकल रहा है। तो मैं कैसे उसको चार्ज करूंगा? रास्ते में चार्जिंग स्टेशन नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये प्रॉब्लम है इंडस्ट्री का। जब तक ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जिस दिन ये सोल्यूशन निकलेगा, किसका बेनिफिट होगा? सोच के देखो। मेरा एज इंडिविजुअल बेनिफिट होगा, यस हो सकते हैं। सोसाइटी का बेनिफिट होगा एज इंडिविजुअल, यस होगा। उस इंडस्ट्री का बेनिफिट होगा, यस होगा। क्या कंट्री का उसमें बेनिफिट होगा? यस होगा। तो देयर शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। इस तरीके से सिस्टम चलता है। अदरवाइज ऐसे सिंगल, मतलब हमेशा हम अपना बेनिफिट देख के सिस्टम नहीं चला सकते हैं। हमेशा मैं अपना ही बेनिफिट देखूं, हमेशा इंडस्ट्री अपना बेनिफिट देखे, ऐसे सिस्टम नहीं चलता है। सिस्टम तभी चल पाएगा, आपके बिजनेस तभी चल पाएंगे, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन में जाना चाहते हैं, कि जब तक आप सोसाइटी के लिए नहीं सोचोगे तब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के हिसाब से सोचोगे कि मैं कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लूं कि मैं एक दिन के अंदर 10,000, 20,000, 1-1 लाख रुपए कमा लूं, शायद वो ठीक है, एक बार आप पकड़ जाओगे, लेकिन जितना ऊपर जाओगे उतना जल्दी नीचे भी गिरोगे। क्योंकि आपने कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम तो सोसाइटी की सॉल्व की ही नहीं। तो प्रॉब्लम इस सोसाइटी की सॉल्व करना सबसे बड़ा नीड था उस टाइम पे, इन द 80s 90s के टाइम पे, जब ये गेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। दैट वाज द नीड ऑफ स्टार्टिंग द हायर स्टडीज, कि जिसमें स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए हायर स्टडीज के, फिर स्टाइपेंड देना स्टार्ट किया कि इंडिपेंडेंसी आ जाए। आप लोगों में से मैं डैम श्योर इस चीज के, अभी आप लोग इस चीज में एग्री करेंगे कि जितने भी लोग यहां बैठे हैं, 90-95% स्टूडेंट्स को बीटेक पे इमीडिएट बाद जॉब का रिक्वायरमेंट नहीं है। 90-95% लोगों को नहीं होता है कि ठीक है ऐसी क्या अर्जेंसी है, ठीक है 5-7%, 10%, मैं एक मार्जिन लेके चल रहा हूं कि ठीक है जिनको नीड होती है, एक्सेप्शंस होते हैं कि ठीक है वो सारा सिस्टम चलाना उनको घर का, या जो भी हर किसी की अपने अपने प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन 90% लोगों को नहीं रिक्वायरमेंट है। तो अभी तक जो आप लोगों ने किया है ना, जो बीटेक किया आपने, वो रैट रेस के अंदर किया है। +2 किया, 10+1 नॉन मेडिकल किया, रैट रेस में किया क्योंकि मेरे को बीटेक करना था। बीटेक किया, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी किया वो रैट रेस में किया कि मेरा फ्रेंड कर रहा है, मेरे को भी करनी है। लेकिन जो हायर स्टडीज डोमेन में जब तुम जाओगे तो वो रैट रेस नहीं होगा। वो तुम एज ए इंडिविजुअल अपने बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, स्पेशलाइज्ड होने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए, ये सारे रीजन से करोगे। दैट विल बी द अल्टीमेट गोल। तभी वो कंपनी जो यहां पे आपको 5-7 लाख का पैकेज देगी, वही कंपनी आपको उन्हीं इंडस्ट्री, उसी आईटी एनआईटी के अंदर जाके आपको 50 लाख का पैकेज देगी, और वो दे रही है। क्योंकि जब आप डिमांड करोगे, कंपनी की रिक्वायरमेंट है यार मेरे को कोई ऐसा सिस्टम दो बना के कि जो चार्जिंग टाइम है किसी भी गाड़ी का, उसको मैं 30 मिनट से 25 मिनट कर दूं। दैट इज ऑल्सो अ बेसिकली रिसर्च। वो भी एक अपने आप में रिसर्च है जिसमें चार्जिंग टाइम को रिड्यूस करना है। और जिसने कर दिया सर मेरे पास है ऐसा सिस्टम, मैंने एक ऐसा सेटअप बनाया है, आईटी में जाके तो देखो यार, आईटी में जाके तो देखो किस तरीके से रिसर्च चल रही है। यहां का इकोसिस्टम क्या बोल रहा है, फॉरेन चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। सिस्टम जब तक तुम यहां से इस इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में नहीं जाएंगे, तब तक हमें आइडिया नहीं लगेगा कि यार कहां पे दुनिया चल रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और वहां पे तुम सेल्फ सस्टेन कर जाओगे, घर से कोई पैसा नहीं लेना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं है। 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप है मास्टर्स प्रोग्राम में, और पीएचडी प्रोग्राम में तो 70,000 रुपए का पर मंथ का स्कॉलरशिप है। अभी बता रहा हूं मैं कौन सी स्कीम है वो। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस।
जो भी दिमाग में इफ डाउट इफ बट्स आएंगे ना, मेरे को एट द एंड ऑफ द सेशन आपने एक एक छोटा छोटा डाउट मेरे से क्लियर करना है कि सर आपने तो ये बोला था, इसका क्या करना है, सर आपने ये बोला था, ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन है। सो यू आई एम गोइंग टू गिव यू, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट्स। तो जितना हो सके दिमाग में डाउट रखने हैं और मेरे को पूछने हैं आपने, जहां पे भी कहीं पे भी आपको डाउट आएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन, बिकॉज बहुत सारी चीजें लिंक्ड है, शायद अभी कोई क्वेश्चन रेज हो गया, वो अगले टाइम के अंदर वो आपका उसका आंसर उसमें मिल जाएगा। तो ये चीज दिमाग में रखना कि मेरे को एंड में आपको क्वेश्चन पूछने हैं और ध्यान से सुनना इस प्रेजेंटेशन को जो मैं आपको बोल रहा हूं। राइट, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में कर सकते हो, 70-30% मैंने आपको बता दिया। हायर स्टडीज के लिए होता है, जॉब्स के लिए होता है। अच्छा, इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वो गेट के एग्जाम में अलाउड नहीं होता है, वहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर आता है। वर्चुअल कैलकुलेटर आएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा, उसकी ऐप वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत कंपनीज ने अपनी ऐप बनाई हुई है, आप वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। गेट स्कोर इज वैलिड फॉर 3 इयर्स, इसका मतलब बताऊंगा क्या होता है, थर्ड ईयर में आप दे सकते हैं। उसके बाद गेट का एग्जाम आप दो गेट एग्जाम दे सकते हैं। जैसे आप लोग मैकेनिकल से, तो मैकेनिकल से तो दे ही सकते हैं, कुछ और अदर सब्जेक्ट से भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पता है किसी को, किसमें आप बीइंग द मैकेनिकल, बीइंग द सिविल, मैं अदर गेट का एग्जाम कौन सा दे सकता हूं? हाँ, कंप्यूटर सिविल के हैं तो एनवायरमेंट से दे सकते हैं, और जियो इन्फॉर्मेटिक्स से दे सकते हैं, बीइंग द सिविल इंजीनियर। मैकेनिकल के किसमें दे सकते हैं? मैकेनिकल के एक्सी, इंजीनियरिंग साइंसेस और प्रोडक्शन में दे सकते हैं। और एक नया पेपर स्टार्ट हुआ है इस बार गेट का, कौन सा है वो? इस बार एक नया गेट का पेपर स्टार्ट हुआ है, डाटा साइंस एंड एआई का। पता है आपको किसी को इसके बारे में कि दिस ईयर आईआईसी बेंगलोर इज बेसिकली गोइंग टू कंडक्ट दिस गेट 2024 एग्जाम, और उन्होंने एक नया गेट का पेपर इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज गेट डाटा साइंस एंड एआई। I am going to tell you that why they have started this paper and what will be the benefit of doing writing the GATE in data science and AI, वो सारा मैं आपको इसके benefits बताऊंगा। Right? Benefits, why should I write the GATE exam? First one is the job. Again, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहता है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो गेट का एग्जाम लिखते हैं, that is a job. Two types of job categories are there which you can get to this through GATE exam. First one is the categories that is the PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कुछ पीएसयू के नाम बताओगे मेरे को? कौन कौन से पीएसयू हैं जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं? आईओसीएल, हाँ जी बोलो बोलो बोलो, गलत होगा कोई बात नहीं, कर रहे हो मत। बीएचईएल यस, और ओएनजीसी यस, और सेल इज देयर। बीएआरसी गेट के थ्रू भी करते हैं, अपना टेस्ट भी लेते हैं, और गेल इज देयर, सेल इज देयर। 250 पीएसयू प्लस पीएसयू हैं जिसके में आप एंटर कर सकते हैं एज एन इंजीनियर। और इन पीएसयू में एंट्री करने के दो तरीके होते हैं, देयर आर टू वेज टू एंटर इनटू दीस पीएसयू। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि सर पीएसयू गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है? पीएसयू गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है? है या नहीं है? तो क्या है, मैंने अलग अलग लिखा है उसको, पीएसयू एंड गवर्नमेंट जॉब, तो इट मींस कि गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है। तो क्या है फिर? ये पब्लिक सेक्टर है। ये बेसिकली कोलैबोरेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये जितने भी आपके ये आपकी मेट्रो हैं हर स्टेट के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और उस स्टेट का एक कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज दिस पीएसयू। वो पीएसयू होते हैं, या कुछ बड़े पीएसयू, महारत्ना पीएसयू लाइक आईओसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, सेल, महारत्ना, दो महारत्ना पीएसयू मिलके भी एक न्यू पीएसयू बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड द नवरत्ना पीएसयू, वो बना देते हैं। तो पीएसयू पहली चीज है, गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। लेकिन दिमाग में गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है। अगर मैं आप लोगों में से ये पूछूं, स्पेशली जो सिविल इंजीनियर यहां पे बैठे हैं जो टारगेट कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब को, क्या रीजन है गवर्नमेंट जॉब का? गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी चाहिए? हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेंगे ना आपसे कि व्हाई यू वांट टू जॉइन द गवर्नमेंट जॉब, आप बोलोगे जॉब सिक्योरिटी। लिखवा के ले लो, आपको कभी नहीं रखेगा वो। इस रीजन से थोड़ा नहीं यार, तुमने अपना फायदा देखा ना, अगेन आपने अपना फायदा देखा। आपको पता है जितना भी असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब्स होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, उसमें इंटरव्यूज होते हैं। क्लास 1 ऑफिसर का जितना भी इंटरव्यू होगा, जॉब्स होगा, वो सारे के सारे में इंटरव्यूज होगा। सबसे पहला रीजन, चलो वो हम वैसे इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं, जॉब सिक्योरिटी। और क्या रीजन? और क्या रीजन होता है गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? एज इंडिविजुअल पूछ रहा हूं, वो पार्ट आप छोड़ दो कि चलो ठीक है। और हाँ, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। और
ठीक है, और सैलरीज ठीक ठाक हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मिस कर रहे हो, मैं सुनना चाहता था, वो चीज बोला नहीं किसी ने अभी तक, नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब, पीएसयू जॉब किसके लिए बनी है? जो आराम चाहते हैं, पैसा ठीक है आ जाए, 50-60 हजार लाख रुपए आ जाए महीने का, सफिशिएंट है। जिसको लाइफ में काम करने का थ्रिल नहीं है, वो बज नहीं है, मतलब पैसा कमाने का या नॉलेज एक्वायर करने का या एक्सप्लोर करने का, उनके लिए पीएसयू और गवर्नमेंट जॉब्स नहीं बनी है। ये चीज दिमाग में बैठा लेना। अभी जो मैं आपको बोल रहा हूं कि जो लोग एक एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सपोजर चाहते हैं, लर्निंग चाहते हैं, पैसा अल्टीमेटली आ जाना है। पैसा कोई नेसेसिटी नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके पीछे भागेगा जब आप लोगों के पास दो चार चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहला चीज नॉलेज, दूसरा चीज ब्रांडिंग, तीसरा चीज जो सबसे और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो एक्सपोजर आप लोगों ने लिया है। आईटी क्यों जा रहे हैं लोग? क्यों इतना आईटी में जाके कंपनीज क्यों दे रही है, पैसा क्यों दे रही है? वही कंपनी जो बीटेक में यहां पे आके आपको 5 लाख दे रही है, वही कंपनी बीटेक के स्टूडेंट को आईटी में जाके 25 लाख भी दे रही है। क्या रीजन है इसके पीछे? ब्रांडिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा, जो एग्जाम क्रैक करके आए हैं बच्चे वहां पे, उनका दिमाग कितना ओपन हुआ होता है। तीसरा, एक्सपोजर। यहां पे पंजाब से स्टूडेंट है, पंजाब से है यहाँ पे मेजोरिटी, आई थिंक फ्रॉम अदर कंट्री आल्सो देयर, और कोई है स्टेट से। अब सोचो आपका जोन कितना लिमिटेड है। नाउ लेट अस सपोज यू आर स्टडीइंग इन द आईटी रोपड़, फॉर एग्जांपल पंजाब रीजन की बात करते हैं, तो वहां पे ऑलमोस्ट आपको हर स्टेट का स्टूडेंट मिलेगा। आपको क्यों नहीं लगता कि आपका उस केस में जो एक्सपोजर है या जो आपको जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा होगा? आपको क्यों नहीं लगता ये चीज? और जितना तुम एक्सप्लोर करोगे, जितना तुम एक्सपोजर ज्यादा होगा, उतने तुम्हारे दिमाग के पर्दे ज्यादा खुलेंगे। बड़े सिंपल से देसी वे में आपको बता रहा हूं मैं, उतने तुम्हारा ही दिमाग ज्यादा ओपन होगा। तुम घूम के आओ यार 15-20 दिन इंडिपेंडेंट, अकेले चले जाओ निकलने, देखो कितना लर्निंग होगा। ग्रुप के साथ मत जाओ, अकेले चले जाओ, बहुत कुछ लर्न करके आओगे। बताने के लिए इतनी स्टोरीज होंगी आपके पास अपने फ्रेंड्स को या अपने घर में फैमिली में बताने के लिए कि 15 दिन मैंने गया तो पहले दिन मेरे को ये प्रॉब्लम आया, मैंने इसको ऐसे सोल्यूशन निकाला, दूसरे दिन मेरे को ये प्रॉब्लम आया, मैंने ऐसे सोल्यूशन निकाला। यही चीज मैं आपको बात कर रहा हूं मैं, कि जब तक तुम इस रीजन से या अपना ये जोन जब तक तुम बढ़ाओगे नहीं, कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई आपको वैल्यू नहीं करेगा, कोई आपको पैसा नहीं देगा। एंड पंजाब पीपल आर द कैपेबल पीपल। दुनिया चला रहे हो तुम लोग, और निकलो लेकिन यहां से जितना हो सके एक्सप्लोर करो। लेकिन आपका वैल्यू तभी पड़ेगा अगर तुम लोगों के पास एक्सपोजर है, तुमने बहुत ब्रांडिंग तुमने किया हुआ अपना, बहुत ज्यादा वो बोलते हैं ना कि घाट घाट का पानी पिया हुआ है, कि बीटेक यहां से, एमटेक कहां से, ये प्रोजेक्ट मैंने यहां से किया, ऑनलाइन इंटर्नशिप किया, गेट एग्जाम निकाला, ईएस एग्जाम निकाला, मैंने स्टेट का एग्जाम भी निकाला है। जब तक तुम्हारे रिज्यूमे पे ये सारी चीजें नहीं आएंगी, तुम्हें वो कोई बंदा वैल्यू नहीं करेगा। हमारे पास एज ए मेंटर जब टीचर रिज्यूमे आता है, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इसने किया क्या है लाइफ के अंदर, कितना इसको एक्सपोजर है चीजों का। देन ओनली ही कैन गाइड टू दो स्टूडेंट की जो इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है योरपीडिया के साथ, ओनली देन ही कैन गाइड यू। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर मेरे को कोई एक्सपोजर ही ना हो, मेरे को पता ही ना हो मैं किस बेस से इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको चीजें बोल सकता हूं, मेरे को पता लग जाएगा कि आपको खुद पता लग जाएगा कि ये बंदा तैयार करके आया, ये नेचुरली फ्लो कर रहा है, ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा आपको। और ये किस किस कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूं, एक्सपोजर जो मैं आपको बात कर रहा हूं, यही एक सिंपल सी चीज है। और इसी चीज के लिए मरी पड़ी है दुनिया। मैं आपको बता नहीं सकता, जैसे योरपीडिया के साथ इतना बच्चा जुड़ता है, इतना बच्चा जुड़ता है, जितना भी बच्चा हायर स्टडीज के लिए जाता है ना, एमटेक के लिए, एमएस के लिए, पीएचडी के लिए, आईआईटीज के अंदर, एनआईटीज के अंदर, आप मान के चलो कि मोर देन 90% स्टूडेंट वो योरपीडिया के थ्रू ही चैनल होके जाता है, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। जो हायर स्टडीज की बात करता है कोई नहीं कर रहा। तो हमें पता है ना कि वो बच्चा जब हमें कॉल करता है, बात करता है, तो क्या क्या चीजें वो क्वेरी करता है, मतलब उसके दिमाग में कीड़ा है। आईएसआरओ का जो रिक्रूटमेंट है, आईएसआरओ 2020 तक अपना टेस्ट लेता था, 2020 में उसने रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दी, और 2023 में इस बार नया रिक्रूटमेंट पहली बार उसने 3 साल के बाद निकाला है। इतनी कॉल मेरे को आई कि सर आई वॉज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, कि मेरे को जाना है सर आईएसआरओ में। इस लेवल का मतलब बच्चों के अंदर होता है, और लगे पड़े हैं, वेट कर रहे हैं, पेशेंस के साथ मेहनत करी जा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। पता नहीं हमारे रीजन को क्या हो रखा है, वो चीज करने को लगे हुए हैं।
जो जो बहुत आसान है यार। पैसा देके तो तुम बहुत इजीली जा सकते हो यार, पैसा देके थोड़ा जाने की रिक्वायरमेंट है बाहर, पैसा कमा के लेके आना है वहां से। और पैसा देने की रिक्वायरमेंट नहीं, यूनिवर्सिटी पैसा देने को बैठी है, उनको बच्चे नहीं मिलते हैं। आईटीज का देखो और वेबसाइट ओपन करके देखो, बच्चे नहीं मिलते हैं पीएचडी के लिए। और पीएचडी को पीएचडी मत समझना, पीएचडी जॉब होती है। तुम्हें 35,000 70,000 पे आपकी पढ़ाई के लिए क्यों देगा कोई? ठीक है 12,400 रुपए, ठीक है उतना चल जाएगा कि कंट्री की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज वो आपको 35-40,000 50,000 70,000 क्यों देगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन? वो तभी देगा क्योंकि उसने आपसे काम लेना, उसके पास प्रोजेक्ट है, उसके पास फंडिंग है, किसी किसी इंडस्ट्री ने उसको दिया हुआ है कि ये ले प्रोजेक्ट, इसको 3 साल में सोल्यूशन लेके आ। शायद मेरा दिमाग ऐसा काम ना कर पाए, लेकिन जो जिस फील्ड में है, जो एक कंपनी रन कर रहा है, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा क्या कोई ऐसी चीज बनानी है 2-3 साल के अंदर, अगर मैंने ये बना दी तो रेवोल्यूशन आ जाएगा। ऐसे सोचते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, मैं कहां से स्टार्ट हुआ है, योरपीडिया फेमस कहां से हुआ है? काउंसलिंग तो मैं एक बात कर रहा हूं, पोस्ट गेट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द इंटरव्यूज। कभी किसी ने सोचा था कि कोविड टाइम के अंदर इंटरव्यू हो जाएंगी? कि इंटरव्यू की तैयारी में कैसे, नॉर्मली इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते थे लोग? कि जाएंगे किसी कोचिंग के पास जाएंगे और वहां पे जाके मॉक लगाएंगे, ऐसे होता है ना नॉर्मली जो होता है। योरपीडिया का प्लेटफॉर्म कि जिसमें ऑनलाइन इंटरव्यू स्टार्ट किए, एंड नाउ आई एम प्राउडली सेइंग दिस थिंग दैट वी आर द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो हर स्टूडेंट को प्रिपेयर करवा रहा है फॉर इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप टास्क। एक डेडिकेटेड चैनल है उसका अलग से, योरपीडिया मॉक इंटरव्यू जीडीजीटी। हर पीएसयू का हम लोग इंटरव्यू लेते हैं उसमें, एंड दिस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म नाउडेज। तो ये लर्निंग जो मैं आपको बात कर रहा हूं, किसी आप लोगों में से किसी ने निटी बॉम्बे का नाम सुना है? निटी बॉम्बे सुने किसी ने निटी बॉम्बे का नाम? नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, राइट। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब का क्या अपॉर्चुनिटीज है गेट के थ्रू? गेट के थ्रू गवर्नमेंट जॉब कौन सी आती है? आपका पंजाब का जो पीएसपीसीएल डिपार्टमेंट है, पीएसपीसीएल डिपार्टमेंट है, हरियाणा का यूटिलिटी डिपार्टमेंट है, वेस्ट बंगाल, यूपी, ओडिशा, इनके जो आपका सब डिवीजन इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर का जो जॉब है वो गेट के थ्रू होता है। हायर स्टडीज करनी है इंडिया ब्रॉड से, तब भी तुम्हें गेट का एग्जाम है। अगर तुम्हें किसी स्पेशलाइज्ड डोमेन में जाना है, स्पेशलाइज्ड डोमेन, जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि कुछ करते करते ही आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप सोचने बैठ जाओगे ना कि सर मेरा इंटरेस्ट पता नहीं लग रहा किस डोमेन में है, ऐसे नहीं पता लगेगा। आपको चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक तुम एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जब तक तुम रास्ता ही नहीं फॉलो करोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें उस रास्ते से क्या प्रॉब्लम्स आई और तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ कहां पे है, तुमने वो डिफिकल्ट रास्ता फेस कैसे किया, और वहीं से आपको चीजें निकल के आएगी। जब तक तुम एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जब तक तुम करना ही नहीं स्टार्ट करोगे, तब तो तुम्हें नहीं पता लगने वाला। इट्स नॉट लाइक कि ठीक है रात को बैठ जाओ समाधि लगा के और पता लग जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट किस डोमेन में है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें करने पड़ेंगे, उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको, तब आपको इन एनी डे किसी एक दिन आप दिमाग में क्लिक करेगी यार ये करते हैं, ये आएगा आपके दिमाग में 101%। अगर आप इस पूरी प्रेजेंटेशन का एक कंक्लूजन निकालोगे, ये तभी होगा। और हायर स्टडीज उसमें एक बहुत स्पोर्टिव चीज है। हायर स्टडीज में बहुत स्पेशलाइजेशंस हैं। मैकेनिकल के लिए फ्लूइड है, थर्मल है, डिजाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एनर्जी है, एरोनॉटिकल है, उसके बाद एरोडायनेमिक्स है, उसके बाद आपके पास मटेरियल साइंस है, एनवायरमेंट है, रॉक साइंस है, अर्थक्वेक है, बहुत ज्यादा वैरायटी है, डाटा साइंस है, एआई है, मशीन लर्निंग है, ये सारी ऑप्शंस ओपन है, मैनेजमेंट की सारी ऑप्शंस ओपन है। जब आप गेट के एग्जाम के बाद जब आप अप्लाई करते हो हायर स्टडीज के लिए, यू विल बी हैविंग रफली मोर देन 1000 ऑप्शंस, मोर देन 1000 ऑप्शंस। लेकिन उसमें से मेरे को कहां पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। वो डिपेंड करेगा कि आपके गेट में मार्क्स कितने आए, आपका सीजीपीए कितना है और आपका कैटेगरी क्या है। इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। उसके लिए हम लोग गाइड करते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। उसके बाद पीएसयू के पैकेज 10 से 18 लाख, ये कुछ पीएसयू के नाम लिखे हुए हैं मैंने। ये कुछ और जॉब्स का ऑप्शन है, जैसे रिसर्च लैब्स होती हैं, उसमें जेआरएफ एसआरएफ होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ये सारी ऑप्शंस आपकी गेट के थ्रू होती हैं, राइट। नाउ कम टू द हायर स्टडीज। आफ्टर डू यू राइट द गेट एग्जाम, 3 ऑप्शंस निकलती हैं आप लोगों के पास। आइदर यू कैन डू द एमटेक प्रोग्राम, एमटेक इज ए 2-year प्रोग्राम, or either you can go for the MS program. MS program in some ITs is called the MTech Research, MTech RA, right? ये 3 साल का प्रोग्राम होता है, 3 साल का।
इसमें स्कॉलरशिप सेम होता है, 12,400 रुपए पर मंथ, 12,400 रुपए मंथ, दोनों में आपको स्कॉलरशिप होता है। एंट्री करना एमएस प्रोग्राम में कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू एमटेक के। अगर आपको एमटेक प्रोग्राम में जाना है, 2 साल के लिए जाना है, तो आप लोगों को गेट स्कोर अच्छा होना चाहिए, गेट स्कोर शुड बी गुड। उसमें सीजीपीए का इतना क्राइटेरिया नहीं है कि मिनिमम होना चाहिए, लेकिन व्हेन यू अप्लाई फॉर द एमएस प्रोग्राम देन यू शुड हैव अ गुड सीजीपीए फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। जो भी आप लोगों में से अगर यहाँ पे कोई है और अगर किसी का सीजीपीए 7+ है और गेट मेयर क्वालिफाई है, 101% you will receive call from the IIT, 101% you will receive call from the IIT। कहां अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको बताऊंगा उस चीज के लिए। सो एमएस प्रोग्राम इज अगेन वेरी गुड ऑप्शन। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। आप लोगों में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे, अभी नहीं बाय द टाइम आप लोगों को पता लगेगा कि सर मेरा रिसर्च एक्यूमेंट बहुत अच्छा है, मेरे को सर रिसर्च फील्ड में जाना है, मेरे को सर रिसर्च करनी है, एंड फॉर दैट देन देयर इज द ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट पीएचडी। गेट मेयर क्वालिफाई, सीजीपीए अगर 7.5 8+ है, 101% यू विल रिसीव कॉल फ्रॉम द डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम फ्रॉम द आईटीज, जहां पे आपको 35,000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप है। और पीएचडी वो नहीं होता कि आपको पढ़ना है, बुक पढ़ना है, ये करना है, नहीं, ये जॉब होती है। आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, आपको रिसर्च करनी होती है, आपको सोल्यूशन देना होता है कि दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ माय दिस रिसर्च, जिसका आपको भी बेनिफिट, सोसाइटी को भी बेनिफिट, इंडस्ट्री को भी बेनिफिट, कंट्री को भी बेनिफिट, प्रोफेसर को भी बेनिफिट। और एक और पीएचडी होती है, दैट इज पीएमआरएफ। सुने किसी ने इसके बारे में? व्हाट इज पीएमआरएफ? व्हाट इज पीएमआरएफ पीएचडी? सुने किसी ने इसके बारे में? हाँ, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। 5 साल का प्रोग्राम होता है आफ्टर बीटेक, 3 साल का प्रोग्राम होता है एमटेक। इसमें आपको 70,000 से लेके 80,000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप है। ये पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, और ये तो इंडिया है, ये फिगर कुछ भी नहीं है फॉरेन के मुकाबले। वो नेक्स्ट पेज के ऊपर है कि इफ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, लेट मी टेल यू वेरी स्ट्रेट, फर्स्ट थिंग, गो एज एन इंजीनियर। एक इंजीनियर के तौर पे जाना है, एक टेक्नोक्रेट के तौर पे जाना है, एक लेबरर के तौर पे नहीं जाना है, पहला चीज। दूसरा चीज, जाना है तो विद स्कॉलरशिप जाना है, अदरवाइज नहीं जाना। पैसा खर्चा नहीं करना है, अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्नड मनी वेस्ट नहीं करनी है, लोन लेके नहीं जाना है। हाँ, मास्टर्स प्रोग्राम अगर आप करने के लिए जाना चाहते हो देन डेफिनेटली उसमें पैसा आपको लगेगा, क्योंकि मास्टर कोर्स छोटा कोर्स होता है, उसमें इतना रिसर्च फैसिलिटी, रिसर्च नहीं ऑप्शंस अवेलेबल होता है, तो वहां पे पैसा लगता है। पीएचडी प्रोग्राम्स आर वर्ल्ड वाइड फंडेड प्रोग्राम। 3,000 से 4,000 यूएस डॉलर पर मंथ का स्टाइपेंड देती है आपको, प्रोफेसर देता है, मैं नहीं बोलूंगा यूनिवर्सिटी देती है, प्रोफेसर देता है आपको। 3,000 से 4,000। जो मैंने यूरोपीडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिखाया था, उसमें बहुत ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जिनको स्कॉलरशिप मिला है। 3,000 स्कॉलरशिप लगता है, 1,500 का आपका खर्चा आता है, 1,500 आपके सेविंग है। $1,500 यूएस डॉलर लगा लो, कितने हो जाएगा? 1 लाख प्लस जाता है सेविंग। और यहां पे कंट्री दे रही है आपको 70,000 80,000 पर मंथ, और इसमें भी खर्चा आएगा आपका। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन जो मैं पॉइंट बात कर रहा हूं वो है एक्सपोजर की। यहां से बीटेक किया, आईटी से एमटेक करो, पीएचडी करने के लिए अब्रॉड चले जाओ। दिस इज द बेस्ट वे टू मेक अ करियर। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। इंजीनियर्स करियर पॉइंट ने 2012 ऑनवर्ड बच्चों को भेजना स्टार्ट कर दिया था, सभी कंपैरिजन मोड में है। कुछ पीएसयू चले गए, 10-12 लाख से खुश थे, आज वही 20 लाख का पैकेज ले रहे हैं पीएसयू के अंदर, क्योंकि सिस्टम तो थोड़ा सा गवर्नमेंट वाला है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो जो आपका ग्रोथ होना है वो एक फिक्स्ड ग्रोथ है। प्राइवेट में कोई लिमिट नहीं होती है ग्रोथ की, प्राइवेट में कोई लिमिट नहीं है ग्रोथ की, हायर स्टडीज में कोई लिमिट नहीं है ग्रोथ की। लेकिन आपके पास वो एक्सपोजर होना चाहिए, तभी आपको वैल्यू करेगा, अदरवाइज आपको वो वैल्यू नहीं करेगा। ये चीज दिमाग में रखना। नाउ अच्छा, आप लोगों में से बहुत ये भी हो सकता है कि शायद मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड हो, सर कैट का एग्जाम देना है, मेरे को अपनी टेक्निकल फील्ड में रहना ही नहीं है ऐसा कोई यहां पे जो कैट के लिए करना चाहते हैं? कैट के लिए इंटरेस्टेड है कोई? मैनेजमेंट डोमेन। अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा, क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट है कि क्यों नहीं करना चाहते आईएम से एमबीए, क्यों नहीं करना चाहते, क्या रीजन है? कि सर मेरे को टेक्निकल फील्ड में रहना है, यही रीजन है? हाँ या ना? ये नहीं, आइडिया ही नहीं उसके बारे में, आईएम के बारे में। इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट टेक्निकल फील्ड में कौन से हैं? आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेडिकल फील्ड में कौन से हैं? एम्स। मैनेजमेंट फील्ड में कौन से हैं? आईएम्स। तो मैं आईएम्स की बात कर रहा हूं मैं।
you can go into the IIMs through this GATE exam, and that program is known as Fellowship Program in Management. 25,000 से 35,000 का स्कॉलरशिप है. उसके बाद you can also go into the management courses through this again GATE exam. जितने भी IITs हैं, जितने भी NITs हैं, सभी के अंदर जो है आपका हायर स्टडीज प्रोग्राम होता है, मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, एंड उसका जो प्रोफाइल होता है ना, वो दैट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द मैनेजमेंट, दैट इज प्रोफाइल इज टेक्नो मैनेजमेंट प्रोफाइल, टेक्नो मैनेजरियल प्रोफाइल. रीजन बिहाइंड, गेट के थ्रू जा रहे हो, गेट इंजीनियर्स लिख रहे हैं, उस क्लास के अंदर इंजीनियर जा रहे हैं, सारी ब्रांच के बच्चे जा रहे हैं. ऐसा नहीं कि नॉन इंजीनियरिंग वाला जा रहा है, ऑल्दो कि अब इन्होंने ओपन कर दिया है गेट, सोशल साइंसेस के लिए ओपन कर दी है, नॉन इंजीनियरिंग के लिए ओपन कर दिया है. इंग्लिश के साथ भी आप गेट का एग्जाम लिख सकते हो, पॉलिटिकल साइंस के साथ लिख सकते हो आप, ये ओपन कर दिया आप लोग. अगर आप लोगों में से कोई नॉन है आपके कि जो करना चाहते हैं, आईटीज में जाके जाना चाहते हैं लेकिन नॉन इंजीनियरिंग डोमेन से है, उसके लिए भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं, गेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. राइट. सो अगर आप लोग मैनेजमेंट डोमेन में जाना चाहते हैं, देन दिस ऑप्शन इज देयर, अगेन द गेट एग्जाम. नाउ थोड़ा सा ब्रॉड की बात करते हैं. थ्रू द गेट एग्जाम, विदाउट गेट तो ऑप्शंस हैं ही अवेलेबल, कोई इश्यू वाली बात नहीं है. आप कोई मेरे को बता सकते हैं कि गेट के थ्रू कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं अब्रॉड में जो मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम के लिए एंट्री करवाते हैं? किसी को पता है? नहीं. अब्रॉड में गेट के थ्रू नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ननियान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, RWTH और क्रैनफील्ड यूके. ये 5 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो गेट के थ्रू आपको मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम के लिए एंट्री देते हैं. स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, खर्चा कुछ नहीं आना, जितना एक्सपेंस मैं आपको बता रहा हूं उतना ही एक्सपेंस आएगा, इससे ज्यादा एक्सपेंस नहीं आता, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है. आप लोग कैसे करते हैं? आप लोग किसी एजेंट के पास जाओगे कि सर मेरे को कनाडा जाना है, आपकी टर्म क्या आपने यूज की? कनाडा जाना है, मेरे को यूके जाना है, मेरे को जर्मनी जाना है, मेरे को स्कॉटलैंड जाना है, मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है. ये टोटली गलत चीज है, टोटली रॉन्ग वे है. आप उसको जब ये बोलोगे ना कि सर मेरे को वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, ये रहा मेरा प्रोफाइल, उसके हाथ ही खड़े हो जाएंगे ये 2 लाइनें सुन के. आप बोलना किसी को जाके कि सर मेरे को वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, विद स्कॉलरशिप जाना है, पैसा नहीं मेरे को खर्चा करना है, और मेरे को मास्टर प्रोग्राम के लिए जाना है. उसके पास आंसर ही नहीं होगा आपकी इस बात का, क्योंकि उनका जो प्रोसीजर है वो एक अलग प्रोसीजर है, उनके टाई अप्स हैं, उनके सेटअप्स हैं, वो सब कुछ चीजें हैं. टारगेट गुड यूनिवर्सिटी. मैं जब मास्टर्स प्रोग्राम हायर स्टडीज की बात कर रहा हूं, मेरे मुंह से सिर्फ आईटी एनआईटी निकला है और कोई कॉलेज का नाम नहीं निकला है. अगर टारगेट कर रहे हो हायर स्टडीज प्रोग्राम तो इन्हीं कॉलेज से टारगेट करना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम करने का. यही चीज एप्लीकेबल है अब्रॉड के लिए भी. इफ यू वांट टू गो अब्रॉड देन ओनली टारगेट द गुड यूनिवर्सिटीज. उसके लिए कैसे होगा सर? वो प्रोफाइल. आपको प्रोफेसर क्यों यस बोलेगा? यहां पे तो एडमिशन लिया, कॉलेज ने एडमिशन दिया है, लेकिन जब आप अब्रॉड में अप्लाई करते हो तो प्रोफेसर के हाथ में होता है सब कुछ. अगर प्रोफेसर को आपका प्रोफाइल अच्छा लगा वो आपको यस बोल देगा. प्रोफाइल से क्या मतलब है? प्रोफाइल से मतलब है आपका सीजीपीए, पहला चीज. दूसरा चीज, आपने क्या प्रोजेक्ट किए हैं, आपने क्या टॉपिक्स पे ऊपर काम किया है, आपका क्या एक्सपर्टीज है, आपकी टेक्निकल डोमेन में क्या क्या एक्सपर्टीज है, कौन सा आपको कोडिंग आता है, कौन सा आपको सॉफ्टवेयर आता है, ये चीजें मैटर करती हैं. और इसका मैचिंग होना जरूरी है आपके प्रोफाइल के साथ, उसकी रिक्वायरमेंट के साथ. उनकी रिक्वायरमेंट के साथ आपका ये प्रोफाइल मैच होना जरूरी है, देन ओनली दे विल से यस, अदरवाइज नहीं. ये प्लीज मेरे को सुनना, ये बाद में भी कर लेंगे, डोंट वरी. तो ये रास्ता है जो आप लोगों ने अपनाना है. पैसा नहीं लगाना, हमने पैसा खर्चा नहीं करना है. तरीका मैंने बता दिया. बीटेक हो रही है, मास्टर्स करो इंडिया से, पीएचडी चले जाओ अब्रॉड से. बहुत स्कॉलरशिप है, 3,000 से 4,000. यूरोपीडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म खोलोगे, वहां पे बहुत आपको सक्सेस स्टोरीज वहां पे नजर आएंगे. अच्छा, अब 2 क्वेश्चन है यहां पे कि मेरे को सिर्फ 2 गेट के एग्जाम देने चाहिए और 3rd ईयर में एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. इसके साथ कुछ क्वेश्चन और भी आएंगे कि सर मेरे को अगर एग्जाम देना है तो किस पेपर के साथ देना है, 1 पेपर देना है, 2 पेपर देना है, 3rd ईयर में देना है, फाइनल ईयर में देना है, कब देना है. देखिए, पहला चीज है कि अगेन आपको पहले ये डिसाइड करना है कि मेरे को किस डोमेन में जाना है हायर स्टडीज में. मेरे को अपनी कोर डोमेन में जाना है, मेरे को नॉन कोर डोमेन में जाना है, या फिर मेरे को गेट का एग्जाम देना है और मैं देखना चाहता हूं कि क्या क्या ऑप्शंस ओपन होती हैं. राइट. क्योंकि आप लोग डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते हो.
डिसीजन आप उसी बेस पे ले सकते हो कि आपका कितना गेट में स्कोर आया, गेट में कितने मार्क्स आए हैं, ये उसके बेस पे डिसाइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन यू राइट गेट एग्जाम उसके बाद डिसाइड होता है, क्योंकि आपके जो गेट स्कोर, सीजीपीए, कैटेगरी, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है जब आप अप्लाई करते हो, राइट। सो 2 गेट एग्जाम देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? यस, आपको 2 गेट एग्जाम आप दे सकते हो। क्यों? रीजन उसके पीछे क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे आप लोगों ने गेट के एग्जाम का पूरे साल मेहनत किया, पूरे साल आपने मेहनत किया, और वो जो 3 घंटे गेट एग्जाम के थे, वो आपकी शायद उस अपनी लाइफ के वो शायद वो 3 घंटे अच्छे नहीं निकले। मेरी तैयारी अच्छी थी सर, लेकिन मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरा 3 घंटे में से फंबल कर गया, प्रेशर आ गया, या ये हो गया, जो भी रीजन हो सकता है, लेकिन मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी। तो क्या करें इसके लिए? एक मौका और होना चाहिए ना। मेरे पास कॉइन है सर, मेरे को हेड लाना है। 1 चांस है, 2 चांस है, 3 चांस है, 4 चांस है। जितने चांसेस ज्यादा होंगे, एक बार हेड या टेल लाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यस और नो? प्रोबेबिलिटी बढ़ी है आप लोगों ने, सभी ने। तो इस कारण से जितना ज्यादा आप मल्टीपल में एग्जाम देंगे उतना ज्यादा बेटर है। लेकिन अब जो डिसाइड करना है कि सर 2 पेपर दे तो कौन से दें, वो डिपेंड करता है कि आप किस डोमेन में जाना चाहते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अपनी कोर डोमेन में रहना है, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से लिखो, एक्सी से लिखो। एक्सी का मैं आपको ब्यूटी बताता हूं, मेरे को नहीं पता आप लोगों में से किसी को एक्सी एग्जाम का ब्यूटी पता है कि नहीं पता। स्पेशली जो लोग मैकेनिकल से, ध्यान से सुनना, सिविल वाले भी एक्सी से गेट का एग्जाम लिख सकते हैं। देखिए, कोई भी गेट का एग्जाम देते हैं तो 30 मार्क्स होते हैं ना नॉन टेक्निकल के, वो फिक्स्ड है, जिसमें 15 नंबर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, 15 नंबर का क्वांट है, रीजनिंग है और इंग्लिश वाला पार्ट है। उसके बाद जो 70 मार्क्स होते हैं आपके टेक्निकल के, वो वेरी करते हैं ब्रांच टू ब्रांच। जब आप एक्सी से पेपर दे रहे हो तो आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस। रिपीट कर रहा हूं, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स। ये 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं और उनमें से वो 35-35 नंबर का आएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जो लोग भी हायर स्टडीज डोमेन में जाना चाहते हैं, तो वो इन एक्सी के साथ पेपर लिख सकते हैं, स्पेशली जो कोर डोमेन में जाना चाहते हैं। ऑल्दो कि जब आप आईआईटी में अप्लाई करते हैं तो 2 डोमेन होती हैं, 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती है। एक है कोर डोमेन जो आपकी ब्रांच से रिलेटेड होता है, सिविल है तो जियोटेक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग हो गया, ये आपकी कोर डोमेन आ गई। नॉन कोर डोमेन जिसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा अप्लाई कर सकता है। कौन कौन सी डोमेन है? इससे पहले मैं भी मैंने आपको बताया था, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, एनवायरमेंटल साइंस, मटेरियल साइंस, एरोस्पेस। आईआईटी मद्रास में एमएस प्रोग्राम में, एरोस्पेस प्रोग्राम में बोइंग और एयरबस आते हैं प्लेसमेंट के लिए। सोच के रखना पैकेज कितना होगा उनका, 40, 45, 50 लाख से कम नहीं होता उनका पैकेज। और जो लोग हमें ज्वाइन करते हैं पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग के लिए, उनका क्लियरली एक चीज दिमाग में रहती है कि सर ऐसी जगह भेजना जहां कम से कम 25-30 लाख का पैकेज लगे। हम लोग पता नहीं क्यों खुश हैं यहाँ पे 5, 7, 10 लाख पैकेज से। ये मैं आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको जो मैं भी आपको चीजें जितनी भी बोल रहा हूं, बिकॉज वी आर द वन जो इस चीज में डील करते हैं। बच्चा क्लियरली बोलता है सर मेरे को 25-30 लाख से कम पैसे नहीं चाहिए, इससे कम पैकेज नहीं चाहिए, तो मेरे को किसी ऐसी डोमेन में भेजना जहां पे इतना सैलरी पैकेज मिले, उसी डोमेन में भेजना मेरे को। आप भी टारगेट करो यार, बड़ा सोचो। एक बहुत बड़ी बात एक बोली थी, मेरे को बताना ये किसने बोली थी, देखते हैं आपको कितना किस चीज में अवेयरनेस है। स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन। किसने बोली ये बात? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन। छोटा सोचना पाप है। उसने गलत वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने पाप वर्ड यूज किया है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडियन है ना, रिलीजन से जुड़े हुए हैं, और रिलीजन, पाप वर्ड रिलीजन के लिए यूज शुरू किया जाता है, यूज है ना? यस और नो? तो इसी कारण से उनको ये लगा कि मैं सिन वर्ड यूज करता हूं कि इनके दिमाग में शायद घुस जाए कि पाप का मतलब कितना बड़ा होता है रिलीजन के अंदर। तो उतना ही बड़ा मतलब है जब आप छोटा सोचते हो। बड़ा सोचो, बड़ा ही सोचना चाहिए। स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन। क्योंकि जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे यार, रोना रवाना छोड़ देना कि जॉब्स नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। बहुत जॉब्स आती हैं, एंड इफ यू आर कैपेबल फॉर द जॉब एट द एज ऑफ 21 हो चाहे एट द एज ऑफ 30 हो, यू कैन इजीली गेट दैट।
लेकिन जो मैं आपको हायर स्टडीज का डोमेन बता रहा हूं, जो मैं आपको एक्सपोजर की बात कर रहा हूं, जो मैं आपको ब्रांडिंग की बात कर रहा हूं, जो मैं नॉलेज की बात कर रहा हूं, शायद वो डिफिकल्ट हो जाए आप लोगों के लिए एट दी एज ऑफ 28 और 30 के टाइम पे अप्लाई करने के लिए। डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी तो आप उस मोमेंटम में है, मोमेंटम पकड़ा हुआ है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन निकले हुए, मोशन में हो। अब इसको मोमेंटम में निकल जाओगे। बड़ा सोचना स्टार्ट करो, छोटा नहीं सोचना है। जितना हो सके बड़ा सोचो, ये चीज दिमाग में रखनी है आप लोगों ने। उसके बाद आई थिंक मैंने आपको आंसर कर दिया कि 2 गेट एग्जाम देने, यस दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो अपनी फील्ड चेंज करना चाहता है, सर मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट है, सर मेरे नॉन करते हैं, सर वो आईआईटी चला गया। आप लोगों में से कोई नॉन है, आप लोगों के सीनियर जूनियर तो नहीं, सॉरी सीनियर वगैरह जो आईआईटीज में है, मास्टर्स कर रहे हैं, स्पेशली नॉन को डोमेन में है आप लोगों में से कोई नॉन? किसी के हैं नॉन? यार रोल मॉडल्स कैसे सेट होंगे, आपको कैसे मोटिवेशन आएगी? बिलीव मी, इस चैनल को फॉलो करना स्टार्ट करो, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा और आपको लगेगा कि शायद सर ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। बिलीव मी दिस थिंग। क्यों मैं इतना बोल्डली, क्यों मैं इतना प्राउडली बोल रहा हूं? बिकॉज वी आर डूइंग दैट एंड वी आर दैट एजेंसी जो हायर स्टडीज इंडिया के अंदर प्रमोट कर रही है, और हम लोग वो एजेंसी है। शायद अगर हम लोग ये बोल दें कि नहीं यार मास्टर्स इंडिया से नहीं, अब्रॉड से करो, तो शायद उस तरफ शिफ्ट हो जाए। राइट? तो इस चीज के साथ इसी ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं चीजें, इनको दिमाग में बिठा लो। देखो दिमाग में बिठाओगे भूल जाओगे। आज जितने भी मैंने आपको चीजें बताई है ना, जो भी आपके दिमाग में चीज हिट की है, क्या ये करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए, उसको कहीं पे भी अपने घर पे जाकर लिख लेना। कॉपी पे लिख लो, कहीं बोर्ड पे लिख लो, ऐसी जगह पे लिख लेना जहां पे कोई उसको देख ना पाए, लेकिन आपने उसको डेली देखना है, क्योंकि भूल जाओगे। और ये जो चीज है जो मैं बोल रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, इंजीनियर्स करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। और ये जो आप लोगों ने भी इंफॉर्मेशन दी है, मैं इसका पर्पस बता रहा हूं। मेरे को पता है आप लोग मेरे पास चंडीगढ़ नहीं आने वाले, मैं उस पर्पस से नहीं आया हूं। हमारा मेन पर्पस होता है अवेयरनेस, जिसमें बहुत लैग कर रहा है पंजाब। मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और वहां पे वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो टाइम पे अपडेट होता चला जाएगा। पेशेंस रखनी है उस ग्रुप में, एग्जिट मत मारना, नंबर सही लिखना, सो दैट कि आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल सके, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो अब्रॉड से रिलेटेड हो। और मैं आपको उन सभी स्टूडेंट से कनेक्ट करवाऊंगा जिनकी एग्जांपल्स मैंने लिए आपको, चाहे वो अब्रॉड में कोई बैठा है, चाहे वो कोई इंडिया में कोई बैठा है। मैं वहां पे सेशंस कराऊंगा, मैं और करवा रही है हम लोग, बहुत कॉलेजेस हैं, टेक, यूआईटी, सीसीटी, चंडीगढ़ तो पूरा आ गया है जो कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। देखो आपको लग रहा होगा सर इसमें आपका क्या फायदा है। देखो किसी न किसी स्टेज पे हमारा बेनिफिट होने वाला है। ऐसा कभी नहीं है कि मैं सिर्फ आपके बारे में सोच रहा हूं या मैं अपने बारे में सोच रहा हूं, हमें हर किसी के बारे में सोचना है, अदरवाइज ये इकोसिस्टम चल ही नहीं पाएगा। अदरवाइज ये सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। इकोसिस्टम सभी बढ़ के आए हुए हैं, बीच में से एक भी निकाल दो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं या आपके बारे में सोचूं या कॉलेज के बारे में या कंट्री के बारे में, नहीं चल पाएगा सिस्टम। ये सारा का सारा ऐसे ही घूमेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा सिस्टम। ऐसे ही इकोसिस्टम वर्क करता है। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? अच्छा, मैं अब बात कर रहा हूं डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोगों में से देखो, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा था कि भाई बीटेक लेवल पे डाटा साइंस और सॉरी बीटेक लेवल पे कंप्यूटर साइंस में क्यों जा रहे हैं बच्चे। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, एक और फैक्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि जितने भी लोग हमारे पास मास्टर्स के लिए काउंसलिंग करने आते हैं ना, रफली 5,000 के आसपास बच्चे आते हैं, 7-8 हजार सीटें होती हैं आईटीज में। इतना तो पेड हमारे साथ सर्विस लेता है बच्चे। मोर देन 50% बच्चे जो हायर स्टडीज करना चाहते हैं, सभी डाटा साइंस और एआई डोमेन में जाना चाहते हैं, चाहे कोई भी ब्रांच से बच्चा हो। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। जितने लोग हायर स्टडीज जाना चाहते हैं आईआईटीज के अंदर, एनआईटीज के अंदर, मोर देन 50% वांट डाटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, मैनेजमेंट कोर्सेज। क्या लगता है क्या रीजन है उसके पीछे? आपको क्या रीजन है उसके पीछे? क्या रीजन है उसके पीछे? एक ही चीज है यार, पैसा, इंटरेस्ट है। आपको क्या लगता है जो आपके फ्रेंड्स ने बीटेक में कंप्यूटर साइंस लिया होगा, कितने ने बाय इंटरेस्ट लिया है? टेल मी दिस थिंग। 5-10% से ज्यादा नहीं होंगे।
5-10% से ज्यादा नहीं, जो बाय इंटरेस्ट लिया जिन्होंने कंप्यूटर साइंस, उन्होंने वो रेड रेस फॉलो करके किया है। यही रीजन है। और क्यों? क्योंकि इस टाइम पे नीड है, लेकिन ये सैचुरेशन आने वाला है। अगला स्टेप अब कंप्यूटर साइंस से अगला जो स्टेप है वो डाटा साइंस और एआई का है। चैट जीपीटी सभी यूज करते होंगे, मेरे को लग रहा है। ये कितनी कैसे काम कर रहा है वो, यही तो है। और क्या है, एक आपकी पुरानी पुरानी फोटो को वो मोशन ले आते हैं उसके अंदर, यही तो है वो। और क्या है, कोडिंग ही तो सारी। और एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप अपनी कोर फील्ड में भी रहना चाहते हो ना, हायर स्टडीज में, तब भी आपको कोडिंग यूज करनी पड़ेगी टाइम सेव करने के लिए। अब कोई भी ब्रांच कोर रहा ही नहीं, आपने एक डिजाइन किया है, ऐसा नहीं है कि आप उसका एनालिसिस पार्ट है वो लोड डाल डाल के करोगे, लोड डाल डाल के करोगे नहीं। आप उसका डिजाइन बनाओगे स्टैट प्रो पे या जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उसका एनालिसिस करेंगे और उससे जो डाटा कलेक्ट होगा वो डाटा साइंस वाला यूज करेगा, और उस डाटा के कंक्लूजन को यूज करेगा आपका एमएल, मशीन लर्निंग और एआई। उससे एक अलग ही फैक्ट्स निकल के आते हैं। ऐसे सिस्टम काम कर रहे हैं। ये डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई क्या चीज है? ये मैथमेटिक्स है सारी। इट्स मैथमेटिक्स ओनली। जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, डाटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, एंटर देयर, या जो इस डोमेन में एंटर करना चाहता है। अब डाटा साइंस ऐसा तो है नहीं कि डाटा साइंस वाला डाटा कलेक्ट कर रहा है, नहीं, डाटा मिल रहा है कोर ब्रांचेस से, कोर ब्रांचेस से डाटा मिल रहा है और उस डाटा को आगे यूज किया जा रहा है। कैसे यूज करना है वो आपकी क्रिएटिविटी लगा लो, या आपका एक नेक्स्ट लेवल का थिंकिंग बना लो कि मेरे पास जैसे हम यूरोपीडिया, हमें डाटा है, मेरे पास 1 लाख बच्चों का डाटा है, पिछले 3-4 साल में कलेक्ट किया है, लेकिन मेरे को अब ये नहीं पता इसको मैं यूज कैसे करूं। समझ मेरा पॉइंट? लेकिन अगर मैं किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास बैठूंगा ना कि हमारी ये मॉड्यूल्स है, ये मेरे पास डाटा है, मेरे पास 1 लाख प्लस बच्चों का ईमेल आईडी है, 1 लाख बच्चों का मेरे पास मोबाइल नंबर है, 1 लाख बच्चों का मेरे पास नाम है, 1 लाख बच्चों का मेरे पास उसका स्टेट है, ये सारा डाटा है मेरे पास। क्या करें इसका? ये मेरे मॉड्यूल्स है, वो बता देगा। यही तो चीज है, और क्या चीज है? यही कि नहीं है? ऐसी तो चीजें काम करती है। अब जो रेवोल्यूशन है वो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है। इंफॉर्मेशन नॉलेज, इंफॉर्मेशन नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत पड़ी है इंटरनेट के ऊपर। शायद आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये जितना भी बोल रहा है सारा इंटरनेट पे ऊपर पड़ा तो है यूट्यूब पे, लेकिन सामने ऐसे बोलने वाला और आपके पास पेशेंस के साथ टाइम वाला नहीं है कोई भी। और खास करके पता नहीं उस पर्सन का बैकग्राउंड क्या होगा, नहीं होगा, कितना उसको उस चीज का वास्ट नॉलेज है नहीं है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं, छोटी 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 बहुत चीजें मैटर करती हैं। मैकेनिकल की बात करते हैं, जो भी पीएसयू टारगेट कर रहे हैं, जॉब टारगेट कर रहे हैं, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैकेनिकल के मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स ही नहीं है। हम लोग जीडी इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, मेयर गेट क्वालिफाई करने पे पीएसयू से कॉल आ रहा है स्टूडेंट्स को, स्पेशली मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट को, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मास रिक्रूटर हैं मैकेनिकल के वो पीएसयूज हैं। मैं वीडियोस डालता हूं, सिविल की जेई की पोस्ट निकल गई, एसडीओ की पोस्ट निकल गई, ये निकल गया, नीचे मैकेनिकल वाले कमेंट डालेंगे मैकेनिकल करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, मैकेनिकल की तो पोस्ट ही नहीं आती। भाई इरिगेशन में रिक्वायरमेंट ही नहीं है मैकेनिकल की, तो क्यों ले लेगा मैकेनिकल का? अब सिविल वाला ये तो बोलता नहीं कि भी आईओसीएल सबसे ज्यादा मैकेनिकल को रखता है या केमिकल को रखता है, हमें 10 ले रहे हैं, मैकेनिकल के 100 ले रहे हैं। तो जिस डोमेन में आपकी रिक्वायरमेंट है उस डोमेन में एंटर कर जाओ ना। और ये अगले 4-5 साल रहने वाला है, चेंज होगा, अभी चेंज होने में टाइम लगेगा। अभी कंप्यूटर साइंस की तरफ भाग रहे हैं लोग, तो जो भी आप लोगों को इसे मैकेनिकल में है गेट में ले आना यार, 40-45 नंबर कोई मुश्किल नहीं है लाने। 101% पीएसयू से कॉल है तुम्हें। फिर जो इंटरव्यू है वो तुम्हारी पर्सनैलिटी बेस्ड होता है। अगर तुम्हारा पर्सनैलिटी उनको अच्छा लगेगा इंटरव्यू के अंदर, देन ओनली दे विल टेक यू। व्हाई यू वांट टू जॉइन आईओसीएल, व्हाई योर गेट स्कोर इज वेरी गुड, व्हाई डोंट वांट टू गो फॉर द हायर स्टडीज, व्हाई नॉट दिस, व्हाई नॉट दैट, आईओसीएल के बारे में कितना जानते हो, यही तो पूछना उन्होंने, और क्या पूछना है। देख लेना, इंटरव्यूज बहुत पड़ी है यूट्यूब के ऊपर। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो? ऐसे बहुत चीजें हैं यार, अपने इस मेंटल ब्लॉक से बाहर निकल जाओ। ये जो टाइम चल रहा है ना आप लोगों का, ये अपना कॉलेज में 4 साल वाला, ये बहुत बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन टाइम मैनेज करना सीखो। यहां पे भी टाइम दो, फ्रेंड्स को भी टाइम दो, लेकिन अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए टाइम जरूर दो, उसके बारे में जरूर सोचो। ये दिमाग से लाइन निकाल दो कि पहले बीटेक तो हो जाने दो फिर सोचेंगे। ये तो वही रेट रेस ही है, क्योंकि आपके दिमाग में बैकएंड पे एक चीज है
कि यार अगर कुछ भी ना बना ना मैं बाहर चला जाऊंगा। ऐसे ही होता है ना। अब ये किसी टाइम पे होती थी कि कुछ भी ना बना ना मैं बाहर चला जाऊंगा, लेकिन अब ये चीज पहले नंबर पे आ गई है कि मेरे को बाहर ही जाना है और कुछ करना ही नहीं है। अगर किसी भी स्टेज में मेरी कोई स्टेटमेंट आपको गलत लग रही है मेरे को बता देना। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और थर्ड ईयर में गेट का एग्जाम जरूर देना है और एक गेट देना है। अच्छा एक चीज और, अगर कोई पीएसयू में जाना चाहता है या जॉब में जाना चाहता है तो जिस बीटेक ब्रांच से, मतलब जिस ब्रांच में आपका बीटेक है ना, उसी ब्रांच में गेट का पेपर देना आप लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। ये चीज दिमाग में रखना। एक्सी में मैंने बोल दिया कि सर 2 ही तो सब्जेक्ट तैयार करने हैं, मैं ले लूंगा अच्छा स्कोर, मेरे को पीएसयू से कॉल आ जाएगा, नहीं एलिजिबल हो। तो जितने भी पीएसयू जो एलिजिबल करते हैं जॉब के लिए, तो जिस बीटेक में आपका ब्रांच में आपका बीटेक है उसी ब्रांच में आपका गेट का पेपर होना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल होते हैं। और इसमें पीएसयू में एंट्री करने के 2 तरीके होते हैं, एक थ्रू गेट एग्जाम, एक बहुत पीएसयू अपना टेस्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल एचपीसीएल इस टाइम पे निकला हुआ है, आईएसआरओ में भी बता के हटा हूं, परसों एचईएल का हो किया था एग्जाम, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का, बीएचईएल अपना एग्जाम लेता है, बीडीएल अपना एग्जाम लेता है, एचआरएल एग्जाम लेता है, बहुत पीएसयू अपना टेस्ट लेते हैं। 100+ एग्जाम्स यू कैन राइट इन अ ईयर। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इंजीनियर्स करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया वो कुछ दिन पहले ही। बहुत एग्जाम्स आते हैं, लेकिन मैं फिर से वही बात बोलूंगा मैं, ठीक है, मैं जॉब बोल रहा हूं या मैं हायर स्टडीज बोल रहा हूं, एक्सप्लोर करो अपने आप को, एक्सपोजर लो, निकलो यहां से, उस जगह बैठ जाओ जहां पे, अब मैं आईआईटी सिस्टम में पूरे इंडिया का बच्चा है। नाउ थिंक अबाउट, जब तुम पीएचडी करने के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, यूएसए में जा रहे हो, वहां पे बच्चा होगा चाइना का, जापान का, इंडिया का, पाकिस्तान का, सोचो तुम्हें कितना एक्सपोजर मिलेगा उसका। समझ रहे हो? आपको यहां लिमिटेड हो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यहां तक आईटी में लिमिटेड रह जाओगे कंट्री लेवल पे, फॉरेन जाओगे तो एक्सपोजर आ जाएगा पूरे वर्ल्ड लेवल का। और ये एक्सपोजर आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्बिनेशन है, विजिबल है ये, चलो बोल देता हूं, ये मैकेनिकल तो विजिबल है ना, ये कॉम्बिनेशन है। जो 2 गेट पेपर की मैंने बात की ना, मैकेनिकल से जैसे हमने पहला गेट का पेपर दिया, तो दूसरा गेट पेपर आप क्या दे सकते हो, एरोस्पेस, डाटा साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनएम मेरे को नहीं पता क्या है, उसके बाद प्रोडक्शन हो गया और एक्सी हो गया, ये सारे हैं, राइट। अदरवाइज गेट पेपर चाहे आप किसी भी ब्रांच से दे लो, कोई नहीं रोकने वाला, कंप्यूटर साइंस से दे लो, चाहे आप फूड टेक से दे लो, जिससे मर्जी दे लो। प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब आप अप्लाई करते हैं बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कि मेरा बीटेक इस ब्रांच में, गेट मैंने इसमें दिया है, तो आप कहां पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो प्रॉब्लम वहां पे आती है, राइट। अब सिविल ब्रांच में अगर आप देखोगे ना, सीई कहां है, सी, ये सी है, तो यहां पे ना डाटा साइंस नहीं लिखा हुआ। बहुत बच्चा मेरे पास यूट्यूब पे क्वेरी कर रहा है कि सर डाटा साइंस सिविल के साथ तो लिखा नहीं हुआ। इसका आंसर ये है कि सेकंड पेपर नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट पेपर तो आप दे सकते हो ना। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सेकंड पेपर कॉम्बिनेशन में आप सिविल के साथ नहीं दे सकते हो, लेकिन आप डाटा साइंस का पेपर एज ए इंडिविजुअल दे सकते हो, पहला पेपर। अब इसका नीड क्या था डाटा साइंस एक पेपर का, चलो मैं उसकी बात करते हैं। देखो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए तो कंपैरेटिवली इजी है, जब वो मास्टर्स प्रोग्राम में जाता है डाटा साइंस एआई या एमएल वगैरह में। अब उसमें मैकेनिकल भी एलिजिबल है, सिविल भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है। सो व्हाट आईटी प्रोफेसर फाउंड कि भाई जब ये स्टूडेंट नॉन सीएस बैकग्राउंड के इन डोमेन्स में आ रहे हैं, तो इनको वो एक बेसिक नहीं है, तो महीना 2 महीना आप लोगों को लग जाता है उस बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए। Now what they then why they started this paper कि अगर भाई तुम डाटा साइंस और एआई डोमेन में जाना ही चाहते हो, then write this GATE एग्जाम, इसी पेपर के थ्रू आओ और अपने बेसिक फंडामेंटल इसके थ्रू क्लियर करके आओ, सो दैट कि तुम्हें वहां पे जाके प्रॉब्लम ना आए। That is the main thing, that is the main reason that why they started this GATE in data science and AI domain. So this is the QR code for our YouTube channel by the name of Yourpedia. Now I am opening this house for any discussion, any doubt you want to discuss. जो भी आपका छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी आपको डाउट है आप डिस्कस कर लीजिए। हेजिटेट मत करना कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, छोटा से छोटा सिली डाउट
उल्टा सीधा कोई भी डाउट यू कैन आस्क। Who is the first brave one? सबसे बहादुर कौन है? हाँ जी, थर्ड ईयर क्लियर हो गया। Then what I should do? पर मैं डिग्री नहीं कंप्लीट हुई। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको क्लियर करने वाला था लेकिन बीच में स्किप रह गया कि जैसे मैंने बोला कि थर्ड ईयर में गेट का पेपर दो, अगर आप गेट थर्ड ईयर में देते हो तो उसके थ्रू आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाओगे फाइनल ईयर में, क्योंकि गेट का पेपर 3 साल के लिए वैलिड है, राइट? तो आप उसको फाइनल ईयर ऑनवर्ड यूज कर सकते हो, मतलब 8 सेमेस्टर ऑनवर्ड यूज कर सकते हो, उससे पहले आप यूज नहीं कर सकते। फिर थर्ड ईयर में सर लिखने का फायदा क्या हुआ? थर्ड ईयर में लिखने का फायदा ये हुआ, वो मैं चांसेस वाली बात बता रहा था कि गेट थर्ड ईयर में भी दिया 2 चांस, गेट फाइनल ईयर भी दिया 2 चांस, 4 चांस, एक तो बेस्ट जाएगा और उस बेस्ट को यूज करके ही आप अपना आगे प्रोसीड करोगे, आगे अप्लाई करोगे। ये रीजन है, तो आप अगर उसको यूज कर पाओगे तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड यूज कर पाओगे। ये है। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूं कि जो पीएसयूज हैं वो मेनली पीएसयूज उसी साल का ही गेट स्कोर के थ्रू वो इंडक्ट करते हैं, राइट? लेकिन अब पिछले 6-8 महीने से क्या हो रहा है, व्हाट ट्रेंड आई एम जस्ट वाचिंग, कि जो पीएसयूज हैं वो पिछले 3 साल को वैलिड करने लग गए हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? स्टूडेंट नहीं है मार्केट में, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं, स्पेशली कोर ब्रांचेस के मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। दिस इज द बेस्ट टाइम, अगर जो स्पेशली जो फाइनल ईयर प्री फाइनल ईयर में है, डिसाइड कर लो सर मेरे को अच्छा मार्क्स लाना है, मेरे को अच्छा स्कोर करना है, वी आर देयर टू हेल्प यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज के लिए हम लोग गाइड करने के लिए रेडी हैं। अगर यूट्यूब पे हम इतना गाइड कर सकते हैं या अपने रीजन के लिए तो इतना कुछ हम कर सकते हैं। एनी डाउट, एनी अदर क्वेश्चन? पहला ब्रेव आ गया, हु इज द सेकंड ब्रेव? पीएसयू की एवरेज सैलरी मैंने वहां पे लिखा था। देखो पीएसयू 3 कैटेगरी में आते हैं, एक महारत्नास, राइट, वो टर्नओवर के हिसाब से होता है, तो महारत्नास की जो एवरेज सैलरी है वो 15 से 18 लाख पर एनएम के हिसाब से होती है, सीटीसी, कोस्ट टू कंपनी। उसके बाद मिनी रत्नास रहता है 14, 15, 13, 14 के आसपास, और जो नवरत्नास है वो रहते हैं 8 से 10 लाख के आसपास। तो ये 3 कैटेगरीज है। और पीएसयू, मेजॉरिटी पीएसयू में जो एज लिमिट होता है जनरल कैटेगरी के लिए, काफी पीएसयू में 25 है, कुछ में 26 है, कुछ में 28 है, कुछ में 30 भी होता है। डीआरडीओ भी है एक फॉर्म, डीआरडीओ के अंदर इस बार उन्होंने 32 कर दिया है। आईएसआरओ में नॉर्मली 32 होता था, लेकिन इस बार उन्होंने रिड्यूस करके 28 कर दिया है। चीजें चेंज होती है, और ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को कलेक्ट बताऊंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और भी बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी, लीव मत करना, बस उसको देखते रहना। एनी अदर डाउट? हु इज द थर्ड वन? देखते हैं कितने ब्रेव है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मेरे को लगेगा शायद आप लोगों ने सुना नहीं ध्यान से, मेरा पर्पस वो शायद मेरे को लगेगा कि फुलफिल हुआ नहीं। एनी अदर डाउट, एनीवन? हाँ जी। बेस्ट कंट्री एज ए मैकेनिकल इंजीनियर डिपेंड करता है कि आप किस डोमेन में जाना चाहते हैं। ये कंट्री टू कंट्री नहीं डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा किस डोमेन में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोर डोमेन में जाना चाहते हैं देन जर्मनी, सी यूएसए विल बी द ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। यूएसए हमेशा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, लेकिन यूएसए का ट्रबल क्या है, स्पेशली एट मास्टर्स लेवल आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं। जर्मनी वगैरह में तो फीस वेव ऑफ हो जाती है, जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं यूरोप के अंदर उसमें फीस वेव ऑफ होती है, राइट? अदरवाइज ये कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, डोमेन के ऊपर, कि थर्मल डोमेन में जाना चाहते हैं या आप उसमें डाटा साइंस में जाना चाहते हैं या आप फ्लूइड में जाना चाहते हैं, किस डोमेन में जाना चाहते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एवरीवन प्लीज लिसन। मेरे को पता है क्योंकि पंजाब रीजन है तो फॉरेन के लिए आप लोग एक्सपीरियंस तो है ही है, शायद मेरी बात आप लोगों को दिमाग में हिट की हो कि जाना है तो अपनी मेन स्पेशलाइज्ड डोमेन में एज ए टेक्नोक्रेट जाना। तो मैं आपको ना वहां पे व्हाट्सएप के ऊपर एक वेब, हमारे जो मेंटर है फॉरेन से रिलेटेड, ही इज राहुल, जो अभी यूएसए में है, पीएचडी कर रहे हैं, तो वो आपका एक जूम पे सेशन लेंगे, वेबिनार, राइट? उनके साथ फॉरेन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे आपने क्लियर करने हैं वहां पे। एनीवन, एनी अदर डाउट? गेट का प्रिपरेशन भी होता है, यस, गेट प्रिपरेशन भी है।
वो सारा है। डाटा साइंस यही का स्टार्ट हो गया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सब ब्रांचेस का चल रहा है। सर बिजनेस की ब्रांडिंग कैसे करते हैं? बिजनेस की ब्रांडिंग होएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्वालिटी के साथ। क्वालिटी के साथ लाइफ में एक चीज याद रखना, क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। बड़ा सिंपल है, देर सवेर चीजें चल जाएगी। कई लोग होते हैं बिजनेस की अच्छा, क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन ब्रांडिंग नहीं होती, बिजनेस चलता नहीं है काम। ये एक चीज ये देखनी है, प्लीज एवरीवन प्लीज लिसन, ये चीज ये देखनी है कि क्या ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। अगर स्लो हो रही है तो चल जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर तुम जाओगे ना जल्दी से उतना नीचे भी देखोगे। तो इस कारण से हमेशा तो स्लो जो ग्रोथ है ना ऐसे होनी चाहिए, सो कि तुम्हें टाइम भी लग रहा है ऊपर जाने में, और अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ बिजनेस में तो नीचे आने में तुम्हें टाइम मिलेगा और अपनी चीजों को चेंज करने में भी तुम्हें टाइम मिलेगा। आपने ये देखना है कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेन चीज वो चेक करनी है। अगर ग्रोथ नीचे हो रही है ना तो इट मींस कि कहीं ना कहीं पे मार्केटिंग में प्रॉब्लम है। आज का टाइम जो आ गया ना वो मार्केटिंग का आ गया, लेकिन मार्केटिंग से आप एक बार चीजें सेल कर लोगे। बायजूस ने कितना मार्केटिंग किया, अनअकैडमी ने कितना मार्केटिंग किया, सब लॉसेस में है, चेक कर लेना। एंड वी आर विदाउट फंडिंग फ्रॉम गॉड से एज ऑफ नाउ, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे यूपीडी का, आपको पता लगेगा कि किस लेवल पे चीजें चलती हैं यहाँ पे, राइट। ये है, हाँ जी कुछ ही बोलो। गेट का एग्जाम होता है एवरी ईयर फरवरी में पहले 2 वीकेंड, तो साल में एक बार होते हैं। फरवरी के पहले 2 वीकेंड फिक्स होते हैं गेट एग्जाम के लिए, फरवरी में। फेब में होता है, अभी फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं, इस टाइम पे फॉर्म फिलिंग चल रहा है गेट एग्जाम का इस टाइम पे। जो देखो एंटरप्रेन्योरशिप में अगर एंटर करना है ना तो पहले तो सारा एक्सपोजर लेना पड़ेगा, सारा एक्सपोजर लेना पड़ेगा। मतलब हम लोग उस स्टेज में हैं, मैं और मेरे जो पार्टनर डॉक्टर विजेंद्र हैं जो इसमें, उनका आईटी दिल्ली से एमटेक पीएचडी है, उन्होंने यूएसए में भी काम किया है, वो डीआरडीओ के एक्स साइंटिस्ट भी रहे हैं। मेरा डोमेन टीचिंग का भी रहा है, इंडस्ट्री का भी रहा है, अपना काम भी किया है, और हम अब उस डोमेन में आ गए हैं कि क्योंकि आप किसी को तब गाइड कर पाओगे या अपने प्रोडक्ट को तभी सेल कर पाओगे अगर आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। और एंटरप्रेन्योर जो के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है आइडिया। आइडिया हमें आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज के ऊपर आपने काम करना चाहते हो। उसके लिए आपको गैप देखना है कि नीड क्या है, कहां पे गैप है। ये जो मैं आपको इंटरव्यू वाली चीज बताई ना, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया था 18 के अंदर ही, कोविड तो 20 में आया है। और उस टाइम तक नीति बॉम्बे की मैं बात कर रहा था, उसने हमें बोला कि हमारे इंटरव्यूज कंडक्ट करवा दो ऑनलाइन, है ही नहीं था 2020 में। तो आपको पहले गैप आइडेंटिफाई करना है कि नीड किस चीज की है। और ऐसा नहीं है कि आइडियाज ये जो गैप है ये सोचते सोचते आ जाएंगे, नहीं, घूमना पड़ेगा। जिस डोमेन में आप काम करना चाहते हो, एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहते हो, उस डोमेन में पूरा एंटर करना चाहते हो, करना पड़ेगा। डिजाइन में जाना चाहते हो, पूरा वहां पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है गैप। उसकी मैं बात बता रहा हूं, टाइनोर का नाम सुना सभी ने? टाइनोर कौन सी कंपनी है? हाँ, जो ये आपके वो बनाते हैं बैंडेज वगैरह, या जो आपके फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है उसको हैंग करने के लिए, ये टाइनोर मोहाली बेस्ड है। ये उसका इंटरव्यू पड़ा है यूट्यूब चैनल पे यूरोपीडिया के, परमजीत सिंह, पीके सिंह उनका नाम है, शायद उनका जो सर का नाम है। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की वीडियोस पड़ी है यूट्यूब पे। इंटरेक्शन चीवा बॉयलर्स के जो ओनर हैं उनका भी वहां पे पड़ा है, उनको सुनो, तुम्हें पता लगेगा कि यार इनको आइडिया कंसीव कहां से हुआ। और फिर दूसरी चीज आ जाती है एग्जीक्यूशन। आइडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जीक्यूशन। बहुत बेकार बेकार आइडिया भी अच्छा क्लिक कर जाते हैं क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा बढ़िया था। उनको सुन के देखना, जो उन्होंने पीके सिंह ने बोली थी बात कि यार ये उन्होंने 95 के आसपास स्टार्ट किया था अपना वेंचर, और इस टाइम पे 1000 करोड़ प्लस की कंपनी है वो टाइनोर। वो कह रहे थे कि मैंने एक बार देखा अपने टाइम के ऊपर, वो प्रोफेसर भी रहे हैं, सारी चीजें उसमें उन्होंने बताई हुई है कि मैं देखा था कि कोई मेरे सामने बैठा था, उन्होंने देखा कि उसने कुछ लगाया हुआ है और उसने पूछा कितने का, इतने का, कहां से है, फॉरेन से ही आती है ये चीजें सारी। तो वहां से उसको आइडिया क्लिक हो गया, यार फॉरेन से, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ी चीज पता है क्या है? सबसे बड़ी जो बेनिफिट देने वाली चीज है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मास में है। इसकी मास के अंदर अगर आप नीड आइडेंटिफाई कर लो ना, वो आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट चलेगा आपका कि इस मास की नीड क्या है। चीज सस्ती हो जाएगी, चल जाएगा, जब उसको मास से मल्टीप्लाई करोगे ना वो बहुत बड़ा फिगर बन जाता है। तो नीड आइडेंटिफाई करना, गैप,
पहले गैप आइडेंटिफाई करना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इन एंटरप्रेन्योर्स के इंटरेक्शन सुनना, वहां पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इंटरेक्शन विद विजनरीज एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको सुनना, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां से। और विजेंद्र सर की भी जब आप चीजें सुनोगे आपको लगेगा यार इज द पर्सन, इसको मेरे को फॉलो करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गैप, वो आइडेंटिफाई कर, जिस दिन आपने आइडेंटिफाई करना है कर लिया, उसके बाद तो फिर आते एग्जीक्यूट करने पे प्लान कर लेना है कि एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। उसके लिए टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंडिविजुअल आप नहीं कुछ कर सकते, और टीम आपकी तब काम करेगी अगर आपको उस डोमेन में कॉन्फिडेंस है और आपको उस डोमेन में नॉलेज है, तब आपकी टीम आपका सुनेगी, अदरवाइज नहीं सुनेगी। ये है। हाँ, गेट का बच्चे कट ऑफ होता है, वो हर साल वेरी करते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वहां से कट ऑफ बनता है। मैकेनिकल के लिए जनरल कैटेगरी ऑन एन एवरेज 24, 25, 26 इसके पास आता है आउट ऑफ 100। बहुत आसान है। गेट इज अ कंसेप्चुअल एग्जाम, गेट रट्टे वाला एग्जाम नहीं है, गेट बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। गेट क्या मांगता है, गेट रिचुअल मांगता है कि डेली मैंने डिसाइड कर लिए 4 घंटे देने हैं तो देने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 बार हाथ से। अगर इतना भी करके चलेगे ना, आराम से यू कैन स्कोर 35-40 नंबर इन गेट, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। लेकिन प्रीवियस ईयर आप तब लगा पाओगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज है। एनीवन, एनी अदर क्वेरी? सिलेबस में उसका आपको इसके वेबसाइट पे मिल जाएगा, आईसी बेंगलोर का 2024, तो वहां से सिलेबस मिल जाएगा। वो आपके कोर्स सब्जेक्ट्स ही होते हैं ज्यादातर, डिजाइन, सॉम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, उसकी एप्लीकेशन आईसी इंजन, पावर प्लांट, आरएच में। हाँ, इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। बस थोड़ा सा जो इंग्लिश वाला पार्ट है जो नॉर्मली हम नहीं पढ़ते हैं, क्वांट, रीजनिंग, वो चीजें होती है। 85 तो आप पढ़ती है इंजीनियरिंग के अंदर। यस, एनीवन, एनी अदर क्वेरी? चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू लिसन मी वेरी पेशेंटली। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भी एक अच्छा अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। जल्दी नहीं करना बच्चे जॉब करने का, मैं अगेन यही से एंड कर रहा हूं। जितना हो सके बाहर निकलो, पढ़ो जितना हो सके, उसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपकी लाइफ के अंदर। और आप लोग इसको रियलाइज करेंगे मे बी बीटेक के 4-5 साल के बाद, जब आप अपना कंपैरिजन करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। इमीडिएट बीटेक के बाद कंपैरिजन नहीं करना है, दिस विल बी अगेन द सेकंड ब्लंडर यू विल मेक। अपने इमीडिएट बीटेक पास आउट होने के बाद कंपैरिजन नहीं करना है कि वो तो जॉब लग गया, वो तो हायर स्टडी चला गया, मैं फ्री रह गया। नहीं, आपने अपने टारगेट्स लेने हैं, आपने अपने गोल्स लिखने हैं और उसको अचीव करने हैं, चाहे उसको साल लगे, चाहे उसको 5 साल लगे, आपको ये देने हैं। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। स्टिल अगर आपको